நாம் தேவ சமூகத்தில் நம்மை தாழ்த்துவோம். हम परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को अर्पण करेंगे। இந்த மாசத்தின் இரண்டாவது வாரத்துக்குள்ளாக கர்த்தர் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார். इस महीने के दूसरे हफ्ते में परमेश्वर में लेकर आया। கடந்த நாட்களில் இருந்தவர்கள் இந்த நாட்களில் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். जो पिछले हफ्ते में थे उनमें से अनेक लोग इस हफ्ते में ना रह पाए। ஆனால் கர்த்தர் நமக்கு கிருபையாக இந்த நாளை கொடுத்ததற்காக, लेकिन परमेश्वर ने हमें अनुग्रह से इस दिन को दिया है, इसलिए நம்மில் வைத்த அன்பை எண்ணி हम पर रखा हुआ प्रेम को गिनकर நாம் தேவ சமூக நன்றியோடு நம்ம காணப்படுவோம். हम परमेश्वर के सम्मुख में धन्यवाद के साथ हम रहेंगे। கர்த்தர் இந்த ஆராதனையை முழுமைப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாக परमेश्वर इस आराधना को पूरी रीति से आशीष करेंगे। தேவ சமூகத்துல நம்மை ஒப்பு கொடுத்து நம்ம ஜெபிக்கலாம். परमेश्वर के सम्मुख में हम लोग अर्पण करके प्रार्थना करेंगे। நாம் எப்பொழுதெல்லாம் அவரை நோக்கி பார்க்கிறோமோ, हम जब जब उसकी ओर देखते हैं, எப்பொழுதெல்லாம் அவருடைய முகத்தை நோக்கி நம்ம பார்க்கிறோமோ, जब जब उसके चेहरे की ओर हम देखते हैं, நம்முடைய முகத்தை அவர் பிரகாசிக்க பண்ணுகிறது. हमारे चेहरे को वो प्रकाशित करता நீங்க है। இந்த நாட்கள் எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும், आप इस दिनों में किस प्रकार की स्थिति में हो, எப்படிப்பட்டதான வேதனை வழியாக கடந்து சென்றாலும், किस प्रकार की वेदनाओं के जीवन में आप हो तो भी அவர் உங்களை பலப்படுத்த விரும்புகிறார். वो आपको बल देना चाहता है। நாம் இந்த ஆராதனை துவக்கமாக इस आराधना की आरंभ से நாம் ஜெபிக்கலாம். हम प्रार्थना करेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. हम प्रार्थना करेंगे। பரிசுத்தம் நிறைந்த பிதாவே, உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். पवित्रता से भरा हुआ परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। இந்த காலை வேளைக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. इस सुबह के समय के लिए आपको धन्यवाद। இந்த ஆராதனையை முழுவதுமாக உம்முடைய அப்பா நீ முழுமைப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். इस आराधना को पूरा आप आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ஆண்டவருடைய மகிமையின் பிரசன்னத்தால் எங்களை நிரப்பும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर की महिमा की प्रसन्नता से भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। வல்லமை ஆவியானவர் सामर्थ की पवित्र आत्मा எங்களுக்குள்ளாக
எங்களுக்குள்ளாக இருந்து हमारे अंदर இந்த रहकर நாட்கள்ல வல்லமையான காரியங்களை செய்யும்படியாக நாங்கள் इन செபிக்கிறோம். दिनों में सामर्थ्य काम करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ஆண்டவரே, இந்த உலகத்துல பாவம் பெருகி கொண்டு இருக்கிறது पिता, इस संसार में पाप बढ़ रहा எங்க है, தேசத்துல பாவங்கள் பெருகி கொண்டு இருக்கிறது हमारे देश में पाप की बढ़ोतरी हो रही है। ஒரு விசை கூட लेकिन एक समय ஒரு தானியேலை போல ஜெபிக்கிற ஜெப வீரர்கள் எங்க தேசத்துல தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். दानियेल के समान प्रार्थना करने वाले वीरों को खड़ा करने के लिए हम प्रार्थना करते நாங்கள் हैं। ஜீவனை வெறுத்து உமக்காக சேவை செய்வதற்கு எங்களுக்கு அந்த தியாகத்தை எங்களுக்கு தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். हम लोग हमारे जीवन को त्याग कर कर आपके लिए सेवकाई करने के लिए ऐसे कार्य हमारे जीवन में எங்களை நீ कीजिए। பலப்படுத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். हमें आप बलवंत करने के लिए हम प्रार्थना करते இதை हैं। கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பீராக. इससे सुनने वाले बच्चों को आप आशीष कीजिए, அவர்களை உயிர்ப்பிப்பீராக. उनको आप जिलाइए, தேவ பலத்தால நீர் மூடும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर की बल से आप भर दीजिए, எல்லா தடைகளை மாற்றுங்க. सारी रुकावटों को बदल படிக்கிற दीजिए। பாடல் ஆசீர்வதித்து தாங்க. पढ़ाई करने वाले जो गीत को आप आशीष कीजिए। ஆராதனையில உம்முடைய மகிமை பிரசன்னம் இறங்கட்டும். आराधना में आपकी महिमा की प्रसन्न होता है। இந்த தியான பகுதி ஆசீர்வதித்தாங்க. ज्ञान की भाग को आशीष कीजिए, வசன பகுதி எங்களோடு பேசும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். वचन की भाग में हमसे बातें करने के लिए हम प्रार्थना करते நீர் हैं। எங்களோடு பேசணும். आप हमसे बातें அதை कीजिए, நாங்கள் கேட்டு वो हम लोग सुनकर அதன்படி நடக்கத்தக்கதாக उसके अनुसार हम चलने के எங்களை लिए ஒப்பு கொடுக்கத்தக்கதாக हमें अर्पण करने के எங்களை लिए நீர் பலப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். हमें आप बलवंत करने के लिए हम प्रार्थना எல்லா करते हैं। தடைகளை மாற்றுங்க. सारी रुकावटों को बदल இதுவே दीजिए, இதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு கேட்கொடுக்கிற பிள்ளை ஆசீர்வதிங்க. इसे सुनने वाले हर एक बच्चों को आशीष அந்த दीजिए, குடும்பங்களை பலப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் उनके ஜெபிக்கிறோம். परिवारों को बलवंत करने के लिए हम प्रार्थना करते அற்புதமான हैं। காரியங்களை செய்யுங்க. अद्भुत कार्य எங்களை कीजिए, தாழ்த்துகிறோம். हम अपने आप को अर्पण करते हैं। அதுவே நீர் பிறகு நாங்கள் சிறுகணும். आप बड़े और हम घटे, இயேசுவின் ஜெபங்களை ஜீவ நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से मांगते पिता, ஆமென். आमीन। இந்த ஆராதனையின் துவக்கமாக इस आराधना की शुरुआत से ஒரு தமிழ் பாடலையும் एक तमिल गीत को ஒரு இந்தி பாடலை படித்து और हिंदी गीत गाकर தேவநாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். परमेश्वर की नाम की महिमा करें। நீங்களும் எங்களோடு கூட आप भी हमारे साथ இணைந்து मिलकर இந்த பாடலை படிக்கும்படியாக एक गीत को गाने के உங்களை लिए அன்போடு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். आपसे विनती करते இந்த हैं। பாடல் வேளையிலே इस गीत के समय கர்த்தர் में உங்களை தொடுவாராக. परमेश्वर आपको छुए, நாம் படிக்கலாம். हम गीत गाएं। ஜீசஸ். ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் அன்பிலும் என்னை சூழ்ந்திட கிருபை மிகவும் அன்பு கொண்டீரே. ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் அனுதினம் என்னை சூழ்ந்திட கிருபை மிகவும் அன்பு கொண்டீரே. எபினேசரா, என்னை நடத்தி வந்தீரே. நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லையே. எபினேசரா, என்னை நடத்தி வந்தீரே. நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லையே. காலை மாலை எல்லாம் வேளையிலும் என்னை நடத்தும் கரங்கள் நான் கண்டேன். தோல்வி நீங்கும் போது சிக்கி தவித்திடாது உதவும் கரங்கள் நான் கண்டேன். காலை மாலை எல்லாம் வேளையிலும் என்னை நடத்தும் கரங்கள் நான் கண்டேன். தேவை பெருகும் போது சிக்கி தவித்திடாது உதவும் கரங்கள் நான் கண்டேன். எல்லா நேரத்திலும் என்னை விடாமல் காக்கும் நீ நல்ல கர்த்தரே. எல்லா நேரத்திலும் என்னை விடாமல் காக்கும் நீ நல்ல கர்த்தரே. ஆயிரமாய நன்மைகள் அனுதினம் என்னை சொல்லிட இருகள் விளக்கும் அன்பும் கொண்டீரே. ஆயிரம் நன்மைகள் அனுதினம் என்னை சொல்லிட இருகள் விளக்கும் அன்பும் கொண்டீரே. நல்ல எபினேசரா, என்னை நடத்தி வந்தீரே. நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லையே. நல்ல எபினேசரா, என்னை நடத்தி வந்தீரே. நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லையே. மரண பள்ளத்தாக்கில் நான் நடந்த வேளை மீட்பும் கரங்கள் நான் கண்டேன். பாடி இந்த வேளை
நான் தெரிந்தவர்கள் இந்த பாடலை படிக்கிற அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். हमारे साथ एक गीत को मिलकर गाइए. மகிமை உமக்கந்தோ அந்த பாடி இந்தி பாடல படிக்கிறாங்க. महिमा तेरी हो. वो गीत गाएंगे. महिमा तेरी हो. महिमा हो यीशु की. महिमा तेरी हो. महिमा हो यीशु की. दूर के आया अपने लिए स्तुति
हम लोग थोड़े समय अभी परमेश्वर के समुख में अपने सर को झुकाकर परमेश्वर के समुख में हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। एक बहुत ही मुख्य समय में हम लोग आए हैं, आराधना का समय, परमेश्वर के साथ मिलजुल कर परमेश्वर के समुख में समय बिताने का समय है। ये समय में परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम के निमित्त इकट्ठे हो, उनके बीच में मैं आकर उन्हें आशीष करूँगा करके परमेश्वर ने वाचा दिया है। लेकिन हम लोग अभी एक जगह में इकट्ठे न हो पाए तो भी हमारी आत्मा एक जगह में इकट्ठे होकर, वो जगह कौन सा? परमेश्वर के समुख में, परमेश्वर के कदमों के पास हम लोग इकट्ठे होकर इस आराधना के समय में हम लोग परमेश्वर के समुख में अपने आप को अर्पण करके प्रार्थना करेंगे। इस जुलाई की महीने में परमेश्वर ये 6 महीना पूरा खत्म कर कर हमें इस 7वें महीने के इस दूसरे हफ्ते में परमेश्वर लेकर आया है। परमेश्वर इतने महीने से कितने सारी संकट, कितनी सारी वेदनाएं हमारे जीवन में हम लोग हर एक दिन उसे पार करने के लिए परमेश्वर अपने हाथ को थाम कर अपनी हथेली में हमें रख कर परमेश्वर अब तक हमें चला कर लाया है। अनेक लोग जो इस वर्ष के आरंभ में हमारे साथ थे, लेकिन आज की स्थिति में वो हमारे बीच में नहीं है। क्या हम उनसे कोई पवित्र है? क्या हम उनसे बड़े हैं? क्या हम उनसे महान हैं? नहीं। क्या हम में ऐसा कुछ गुण है जो हमें उनसे बढ़ा कर दे कि हमें परमेश्वर इस संसार में अब तक रखा है? नहीं। केवल और केवल उसकी अनुग्रह, परमेश्वर की अनुग्रह से परमेश्वर ने हमें जीवित इस संसार में रखा है। उस अनुग्रह को याद करते हुए हम लोग थोड़े समय परमेश्वर के समुख में अपने आप को अर्पण कर कर उसकी धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर करके हम लोग मुंह खोलकर परमेश्वर के पास आकर, परमेश्वर धन्यवाद, मुझे जीवित रखने के लिए धन्यवाद। इतने दिन मुझे अपनी हथेली में रखकर अपनी आँख की पुतली की नाई मुझे चला कर लेकर आया है, इसलिए धन्यवाद करके कहेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद करते करते जितना हम धन्यवाद करेंगे उतना परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में, परमेश्वर की दया और कृपा हमारे जीवन में वो बढ़ता रहता है। हम परमेश्वर के समुख में एक मन के साथ परमेश्वर हम मनुष्य से क्या चाहता है, एक प्रार्थना के समय, आराधना के समय परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, एक मन के साथ हम जो कुछ भी मांगे परमेश्वर वो सब से हमको आशीष करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब जन मिलकर थोड़े समय परमेश्वर के समुख में अपने आप को अर्पण करते हुए धन्यवाद की गीत हम लोग परमेश्वर के समुख में हम लोग मिलकर गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा।
परमेश्वर के सम्मुख में हम जिस तरह से गाए हैं, मांगने से ज़्यादा हमें मिला है। हमने परमेश्वर से जितना मांगा या जितना चाहा, उससे ज़्यादा परमेश्वर ने हमें दिया है। योग्यता से बढ़कर हमें दिया है। हम जिसके योग्य भी ना थे, कितनी अच्छी गीत है ये, हम जिसके योग्य नहीं थे, परमेश्वर ने हमें योग्य बनाकर इस संसार में, परमेश्वर ने हमें अपने लहू से खरीद कर, परमेश्वर ने हमें अपना बनाकर, अपना पुत्र बनाकर, परमेश्वर अब तक हमें चला कर लेकर आया है। इतनी बड़ी अनुग्रह, इतनी बड़ी अनुग्रह। परमेश्वर का वचन कहता है, इतना अच्छे परमेश्वर से कोई और देवता कहीं है क्या? इतना अच्छे देवता से कोई और देवता कहीं है क्या? इतना अच्छा परमेश्वर हमारे बीच में है। वो हमें योग्य बनाने वाला परमेश्वर, हमें जिसके हम काबिल भी नहीं थे, हमें काबिल बनाकर हमें आशीष करने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में, आज हमारे बीच में, जहाँ 2-3 जन मेरे नाम के निमित्त इकट्ठे हो, उनके बीच में मैं हूँ करके परमेश्वर ने वाचा किया हुआ परमेश्वर आज हमारे बीच में मांगने वाले हर एक को योग्यता से बढ़कर जितना मांगा उससे ज्यादा देने वाला परमेश्वर, मांगने वाले हर एक को देने वाला परमेश्वर आज जो भी लोग, जो भी परमेश्वर के सम्मुख में, इस आराधना के सम्मुख में परमेश्वर से मांगने वाले हर एक को परमेश्वर उनकी आशीष से भरेगा करके हम विश्वास के साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हमें योग्य बनाने के लिए धन्यवाद, हमें योग्य बनाने के लिए धन्यवाद। न योग्य थे हम लोग इस संसार में, एक संसार की कीचड़ में पड़े हुए हमको परमेश्वर आप इस कीचड़ से हमें निकाल कर, हमें शुद्ध कर कर, हमें योग्य बनाकर अपने सम्मुख में लेकर आने के आए हुए बड़े अनुग्रह के लिए धन्यवाद। ऐसे परमेश्वर को धन्यवाद करो। धन्यवाद करते 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 परमेश्वर के सम्मुख में धन्यवाद करते करते हमारे जीवन में, अपने जीवन में परमेश्वर अपनी अनुग्रह और दया से दिन भर दिन परमेश्वर हमें चला कर लेकर आता रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब अपनी सरों को झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद इस अच्छे समय के लिए, धन्यवाद पिता। इस अच्छे आराधना के समय में परमेश्वर आप हमारे बीच में थे, इसलिए हम लोग धन्यवाद करते परमेश्वर। इस समय में परमेश्वर, इस आराधना के समय में जो भी लोग आपके सम्मुख में, जो भी कार्य परमेश्वर आज के इस समय में आपसे जो भी मांगे हो परमेश्वर, वो आप पूरा करके देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आपकी अनुग्रह, आपकी दया, आपकी परमेश्वर कृपा दिन भर दिन इस वीडियो को देखने वालों के ऊपर, इस जो आराधना में भाग लिए हुए हर एक के ऊपर आपकी अनुग्रह दिन भर दिन बढ़ने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर न योग्य मनुष्य हमको भी आपने योग्य बनाकर अपने सम्मुख में हमें इकट्ठा कर लेकर आने के लिए आपने बड़ी अनुग्रह दी, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। अपने लहू से हमें मोल लेकर आपने हमें बचाया, इसलिए धन्यवाद। जिस आराधना को आप आशीष करके दिया है, इसलिए धन्यवाद। आगे के हर एक भागों को भी आप आशीष करके दीजिए। आपकी अनुग्रह लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए हम लोग प्रार्थना करते परमेश्वर। और कुछ समय हम लोग आपकी वचन को ध्यान करने वाले परमेश्वर, आपकी वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए, आपकी वचन के द्वारा हमें कुछ कार्य सिखाइए परमेश्वर। हम लोग आपके वचन में ही हम लोग चलकर उसमें हम लोग बढ़ने के लिए मदद कीजिए। आपकी अनुग्रह हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से सुनो प्रभु का स्वर्गीय पिता, आमीन। हालेलुया। हम लोग थोड़े समय अभी परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। इतना समय हम लोग परमेश्वर की आराधना किए, हम लोग कुछ समय आरंभ से लेकर परमेश्वर के सम्मुख में गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति किए। अभी परमेश्वर की आराधना करने के बाद एक और मुख्य समय में हम लोग आए हैं, वो है परमेश्वर की वचन को ध्यान करना। परमेश्वर की वचन को ध्यान करते समय मैंने पहले भी कहा है, जब भी हम लोग परमेश्वर की वचन को पढ़ते हैं या परमेश्वर की वचन को हम लोग ध्यान करते हैं तो हमें कौन से सोच के साथ पढ़ना है, परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है, क्या परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है, वो हम लोग उस अध्याय से या उस वचन से सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो आज हम लोग ध्यान के लिए लिया हुआ भजन है Psalms 66, भजन संहिता 66 हम लोग आज ध्यान करने वाले हैं। एक छोटा भजन है। हम लोग इस वचन से, ये भजन जो है दाऊद के द्वारा लिखा हुआ एक भजन है। तो इस भजन में अनेक कार्य है देखने के लिए, लेकिन इसमें से हम लोग मुख्य दो वचन को आज हम लोग ध्यान करने वाले हैं। सारे वचन को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी दो वचन को हम लोग ध्यान कर परमेश्वर उससे हमें क्या सिखाना चाहता है, या फिर हमारे जीवन में हम लोग कैसे उसे उपयोगी कुछ कार्य कर सकते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में हम लोग कैसे रहना है, दाऊद की इस भजन से हमें क्या सीखने मिलता है, वो हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे भजन संहिता 66 का 13 और 14 वचन। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 13, मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा और मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुंह खोलकर मांगी और संकट के समय कही थी। ये छोटा सा दो वचन है, लेकिन बहुत ही गहरा अर्थ इसके अंदर है, वो हम लोग ध्यान करेंगे। सबसे पहला क्या लिखा है, मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा। तो दाऊद क्या कहता है परमेश्वर से, परमेश्वर के भवन में आते समय मैं होम बलि लेकर आऊंगा। पुराने समय में हम लोग अधिक इस शास्त्र में पढ़े हैं, हम सबको ये कार्य पता है। पुराने नियम में जो भी लोग भवन में जाते थे, या उनके घर में कुछ बच्चा हुआ हो, या कुछ विशेष कार्य हुआ हो, या फिर मुख्य लोग जो परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर के भवन में जाते थे, तो वो लोग खाली हाथ जाना पसंद नहीं करते थे। वो लोग क्या करते थे, कुछ मेमना हो गया या भेड़ हो गया, कुछ बकरी हो गई, या गाय बैल कबूतर, ऐसे कुछ ना कुछ परमेश्वर के सामने परमेश्वर के लिए अर्पण करने के लिए, परमेश्वर को बलिदान देने के लिए खाली हाथ न जाते हुए अपने हाथ कुछ ना कुछ परमेश्वर के लिए लेके जाते थे। तो इसमें से क्या इम्पोर्टेंट कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के भवन में जाते समय कोई खाली हाथ जाना पसंद नहीं करता था उस समय में। तो लोग क्या करते थे, परमेश्वर के सम्मुख में कुछ ना कुछ बलिदान देने के लिए, परमेश्वर को कुछ ना कुछ अर्पण करने के लिए उनसे जितना हो सके उतना प्रयास करके लेकर जाते थे। यीशु का जीवन भी देखिए, यीशु जब जन्म हुआ, जब उसके माता पिता मंदिर गए यीशु को लेकर, तब वो लोग क्या लेकर गए, उनसे जो हुआ एक कबूतर लेकर गए। तो उसी तरह से कुछ ना कुछ परमेश्वर के लिए लेकर ही लोग जाना पसंद करते थे। दाऊद भी वही कहता है, मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा। दाऊद क्या कहता है, मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा। लेकिन आज हम परमेश्वर के सम्मुख में या परमेश्वर के भवन में कैसे जाते हैं? आज अनेक लोग को देखेंगे तो वो लोग पवित्र शास्त्र को भी लेकर नहीं आते। अनेक जवानों को देखिए, बच्चों को देखिए, बड़े लोग को भी देखिए, अनेक हम लोग अधिक स्थानों में देख सकते हैं खाली हाथ ऐसे उठकर सुबह सुबह कलीसिया में आना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, परमेश्वर के भवन में आते समय कुछ ना कुछ परमेश्वर के लिए लेकर आना है। पुराने नियम में जिस तरह से वो लोग परमेश्वर के सम्मुख में होम बलि या भेड़ बकरी कुछ ना कुछ लेकर आते थे, खाली हाथ जाना पसंद नहीं करते थे, उसी तरह से हम भी परमेश्वर के सम्मुख में खाली हाथ नहीं आना है। परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर के लिए चढ़ाने के लिए बलिदान को हमें लेकर आना है। अगर हम लोग देखेंगे पुराने नियम में जो कार्य बलिदान का कार्य होता था, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार में 2000 के सालों के पहले क्रूस पर अपने आप को बलिदान देकर, किसके लिए? आपके लिए और हमारे लिए अपने आप को बलिदान देकर इस जो भेड़ बकरी की बलिदान है उनको उसको समाप्त किए। क्यों? परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई किसी को बलिदान दे, लेकिन उसके बदले परमेश्वर दूसरे बलिदानों को चाहता है। किस तरह की बलिदान? परमेश्वर की स्तुति का बलिदान, परमेश्वर की आदर की बलिदान, परमेश्वर की महिमा की बलिदान, परमेश्वर को जो हम धन्यवाद चढ़ाते हैं वो बलिदान। जैसे हम आराधना में गीत गाए, धन्यवाद करके हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद किए, परमेश्वर इन कार्यों को चाहता है। जब भी हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हमें क्या नहीं करना है, खाली हाथ नहीं आना है।
खाली हाथ से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई पैसे लेके आओ, कोई धन दौलत को लेके आकर परमेश्वर को दे दो, ये नहीं। परमेश्वर के सम्मुख में आते समय परमेश्वर क्या चाहता है? आपकी हृदय को चाहता है। परमेश्वर आपकी धन, आपकी दौलत किसी को नहीं चाहता, परमेश्वर आपके हृदय को चाहता है। परमेश्वर क्या कहता है? अपना हृदय मेरे लिए खोलेगा क्या, या अपने हृदय मेरे लिए खोल कर देगी क्या? परमेश्वर यही चाहता है। तो परमेश्वर के भवन में हम जब भी आते हैं, ये कार्य हमारे जीवन में हमें बहुत ही अच्छी तरह से सीखना है, या फिर अपने बच्चों को ये कार्य को सिखाना है कि परमेश्वर के सम्मुख में हमें खाली हाथ नहीं आना है। दाऊद जिस तरह से कहा कि परमेश्वर की कलीसिया में चलो करके बोलते ही वो क्या हुआ? मग्न हुआ, वो आनंदित हुआ। तो आज परमेश्वर के कलीसिया में चलो करके बोलेंगे तो क्या हम आनंदित होते हैं? क्या हमारे बच्चे जो है आनंदित होते हैं, या फिर दुख के साथ, वेदना के साथ, इतवार है जाना ही है करके वो लोग आते हैं? उस तरह से नहीं आना है। परमेश्वर की कलीसिया में एक आनंद के साथ, परमेश्वर की भवन में एक आनंद के साथ आना है। वही परमेश्वर की बलिदान, वही परमेश्वर चाहने वाला बलिदान। परमेश्वर के भवन के अंदर प्रवेश करते समय एक स्तुति की गीत के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उस तरह से हम लोग परमेश्वर की भवन में हमने क्या करना है? प्रवेश करना है। तो दाऊद जिस तरह से कहा, मैं तेरे भवन में होम बलि को लेकर आऊंगा, तो उस तरह से हम लोग भी, हमसे जितना हो सके परमेश्वर के भवन में हम लोग को कैसा रहना है? एक बलिदान के हृदय के साथ, परमेश्वर को बलिदान देने वाले हृदय के साथ हमें क्या करना है? प्रवेश करना है। परमेश्वर का भवन ऐसी व्यर्थ भवन नहीं है। परमेश्वर रहने वाली स्थान, वहां पर हम लोग आते समय एक भय और एक भक्ति के साथ हम लोग आना है। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो दाऊद कहता है, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुंह खोलकर मांगी और जब मैं संकट के समय कही थी। दाऊद क्या कहता है? संकट के समय उसने क्या किया? मन्नत मांगी। और वो क्या कहता है? जो मैंने मुंह खोलकर मन्नत संकट के समय मैंने मांगी, वो मैं क्या करूंगा? पूरी करूंगा। मन्नत, ये मन्नत जो है बहुत ही मुख्य है। हम लोग अधिक समय में मन्नत लेते हैं, लेकिन किस तरह की मन्नत लेते हैं वो बहुत मुख्य है। हम लोग क्या कहेंगे परमेश्वर से? हम लोग जिस तरह से कहते हैं वो मैं कहता हूँ। अनेक लोग कहते हैं कलीसिया में आएंगे, कुछ देखेंगे कलीसिया में ये नहीं है, वो नहीं है, ट्यूबलाइट काम नहीं कर रहा है, तो परमेश्वर से हम लोग हमें कुछ जरूरत रहेगा तो हम लोग परमेश्वर से मांग लेंगे, परमेश्वर मुझे ये दो तो मैं ट्यूबलाइट लगा दूंगी, लगा दूंगा। परमेश्वर मुझे मेरे जीवन में ये पूरा करके दो, तो अगर फैन नहीं चल रहा है तो मैं 2 फैन और लगा दूंगा या लगा दूंगी। ऐसा कलीसिया के छोटे छोटे कार्य हम लोग क्या करते हैं? हमारे जीवन में हम लोग मन्नत मांगते हैं। क्या ये सही मन्नत है? मैं ये सही या गलत ये नहीं कह रहा, लेकिन क्या हमें इस तरह की मन्नतें हमारे जीवन में मांगना है? या फिर जो मन्नत हम लोग हमारे जीवन में मांगते हैं, क्या हम उसे पूरा करते हैं? क्या हमें उसे पूरा करने के लिए हम लोग चाहते हैं? अधिक समयों में हम लोग अपने आप को जांच कर देखने चाहिए। संकट, दाऊद क्या कहता है? संकट के समय में जो मैंने मन्नत मांगी, अपने मुंह से जो मैंने मन्नत मांगी उसे मैं पूरा करूंगा। तो संकट हर एक व्यक्ति की जीवन में आती है, हमारे जीवन में भी आती है, आपके जीवन में भी आती है, मेरे जीवन में भी आती है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं? मन्नत मांगते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं संकट में हूँ, मुझे इससे बचा, तो मैं कुछ ना कुछ करूँगा या कुछ ना कुछ करूँगी। और अधिक समयों में परमेश्वर हमारी मदद भी कर देता है, समझो। तो उसके बाद क्या हम मन्नत पूरी करते हैं? वो बहुत मुख्य है। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर जो कहा हुआ मन्नत को अगर तू पूरा ना कर सके या पूरा करना ना चाहे, तो भला होता कि तू मन्नत ही ना मांगे, क्योंकि वो पाप है। परमेश्वर के सम्मुख में जो भी हम लोग मांगते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में जो भी हम लोग मुंह खोलकर बोलते हैं, उसे हम लोग पूरा करना चाहिए। और मन्नत, किस तरह की मन्नत हमें लेना है, उस बारे में हम लोग देखेंगे कि ये छोटे छोटे कार्य, जैसे मैंने कहा कि कलीसिया में लाइट नहीं है तो लाइट लगा दूंगा, या कलीसिया में फैन नहीं है फैन लगा दूंगा, कलीसिया में चेयर नहीं है चेयर ला के डाल दूंगा। ये मन्नत, इसे परमेश्वर जो चाहने वाला मन्नत है ये वो नहीं है। ये जो है ये हमारे कार्य है, ये हम लोग बिना मन्नत के भी पूरे कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का भवन जो है वो हमारा भवन है, वो हमारी घर है।
हमारे घर को जितना ख्याल रखते हैं उससे ज्यादा हमें परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की भवन की हमें ख्याल रखना है। तो अगर कुछ कमी है तो वो हमें बिना मन्नत के ही हमें पूरा करना है। तो हमें मन्नत, किस प्रकार की मन्नत मांगना है, तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है वो हम लोग ध्यान देना है। सबसे पहले हमारे जीवन में कुछ कमी है, तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में क्या कमी है परमेश्वर के सम्मुख में, उसे हमें मन्नत के रूप में मांगना है। जैसे कि अगर मैं समझो मैं प्रार्थना ही नहीं करता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ प्रार्थना नहीं करता हूँ, ऐसे ही उठ के अपना काम करता हूँ, तो अगर मैं मन्नत मांग रहा हूँ तो परमेश्वर से क्या मन्नत मांग सकता हूँ? परमेश्वर मैं अभी तक प्रार्थना ही नहीं करता, लेकिन अभी से मैं प्रार्थना करना, रोज एक समय में प्रार्थना करना आरंभ करूंगा, ये मन्नत हो गई। ये जो मन्नत है परमेश्वर चाहने वाला मन्नत। या फिर मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूँ तो कुछ हुआ तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ कि परमेश्वर मैं आपसे ठीक से बाइबल पढ़ूंगा। या फिर मैं अभी 5 मिनट प्रार्थना करता हूँ तो परमेश्वर से मन्नत मांग सकते हैं कि परमेश्वर मैं आपसे लेकर सर्वदा 15 मिनट तक मैं प्रार्थना करूंगा। तो इस तरह की मन्नत जो है परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। परमेश्वर हमसे कभी कुछ धन दौलत पैसे ये सब नहीं चाहता। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमारे हृदय को खोलकर परमेश्वर के सम्मुख में हम लोग अर्पण करें, वही परमेश्वर चाहता है। तो मन्नतें किस प्रकार की मन्नतें लेनी है जो हमने देखा। परमेश्वर जो चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, पहले हम लोग वो ध्यान करके देखना चाहिए। जब हम लोग कुछ समस्या में हो, जब हम लोग कुछ संकट में हो, तो हमें जाकर परमेश्वर को नहीं कोसना है कि परमेश्वर मैं ये संकट में हूँ, परमेश्वर वो हो गया ये हो गया, वो नहीं। हम में क्या गलती है, हम में क्या कमी है, हमने कहाँ गलती किया, उससे हम लोग जांच कर परमेश्वर के सम्मुख में हम लोग प्रार्थना करना है। तो दाऊद वही कहता है कि परमेश्वर जब मैं संकट में था तब मैंने अपने मुंह खोलकर जो मन्नत मैंने मांगी वो मैं तेरे सम्मुख में पूरा करूंगा, वो तेरे भवन में मैं पूरा करूंगा। वो दाऊद का 66 भजन संहिता से हम लोग आज 2 कार्य, इजी कार्य 2 हमने सीखा। पहला, दाऊद जो कहता है मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा। तो परमेश्वर के भवन में हम लोग आते समय खाली हाथ कभी नहीं आना है। अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, किसी को भी, सबको ये कार्य सिखाओ कि रास्ते में आप लोग चल के आओ, गाड़ी से आओ, कैसे भी आओ, लेकिन खाली हाथ नहीं आना है। अपने शास्त्र को, परमेश्वर ने जो पवित्र वचन दिया है उसे लेकर आना है। ये वचन जो हम लोग हाथ में लेकर आते हैं वो एक भाग, और दूसरा भाग हम लोग परमेश्वर के भवन में आते समय एक स्तुति के हृदय के साथ, एक महिमा के हृदय के साथ, एक धन्यवाद का हृदय के साथ, परमेश्वर जो चाहने वाला बलिदान है उसके साथ हम लोग परमेश्वर के भवन में हम लोग आना है। दूसरा, मन्नतें, परमेश्वर चाहने वाली मन्नतें हम लोग क्या करना है, परमेश्वर के सम्मुख में अर्पण करना है, वो हम लोग देखा। तो हम लोग ये दोनों कार्य में थोड़ा इस हफ्ते हम लोग ध्यान करके देखेंगे कि हम लोग जब मन्नत मांगते हैं, और एक कार्य अपने जीवन में आप लोग जरा सोच कर देखिए कि क्या पिछले समयों में ऐसा कोई मन्नत है कि जो मैंने मांगी और मैंने अब तक पूरा नहीं किया है, तो वो पाप है। तो हमें उसे ऐसा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, उसे पूरा करना चाहिए कोई भी स्थिति में, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो हमसे कहता है कि जो मन्नत हमने मांगी उससे हम लोग पूरा करना है। तो दाऊद की इस जीवन से, दाऊद की इस भजन से हम लोग 2 कार्य सीखे आज। एक है मन्नत, जो मन्नत हमें किस तरह से मन्नत मांगनी है और मन्नत को हमें पूरा करना है या नहीं करना है। दूसरा, परमेश्वर के भवन में हम लोग किस प्रकार से आना है और परमेश्वर चाहने वाला बलिदान क्या है। तो ये 2 कार्य को हम लोग इस हफ्ते में ध्यान कर परमेश्वर के सम्मुख में हम लोग प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर ने जो वचन हमसे बातें किया है, इस वचन के अनुसार हम लोग चलने की प्रयास करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप हर एक को आशीष करें। आमीन। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। நாம் இதுவரைக்குமாக கர்த்தர் நம்முடைய ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஆசீர்வாதமாக அவர் மாற்றி தந்திருக்கிறார். अभी तक परमेश्वर हमारे हर एक भागों को आशीष करके दिया है। உண்மையாகவே கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். सच्चाई के साथ परमेश्वर हमारे साथ है। அவர் ஆராதனையிலே பிரியப்படுகிற தேவன். वो आराधना में प्रिय होने वाला நாம் परमेश्वर। எப்பொழுதெல்லாம் ஸ்தோத்திரம் ஆராதிக்கிறோமோ, हम जब जब उसी आराधना करते हैं அவர் நம்ம பக்கத்துல கடந்து வந்து वो हमारे पास आकर நம்மளை அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார்.
ஆசீர்வதிக்கிற वो தேவன். हमें आशीष करता है। என் நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்தும். मेरे नाम को लेने वाले எந்த ஸ்தானத்துல வந்து कोई भी स्थान में आप நான் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை சொல்லியிருக்கிறேன். मैं तुम्हें आशीष करूंगा क्योंकि परमेश्वर அவர் कहता है உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். वो तुम्हें आशीष करेगा। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த காலை வேளை கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். सुबह के समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं। இயேசுவின் நாமத்தினால எல்லாருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். यीशु के नाम से आप सबको प्रेम की बधाइयां देते हैं। உங்களை மறுபடியுமாக இந்த சோதர ஆராதனை மூலமாக சந்திப்பதில் நாங்கள் மிகவும் சந்தோஷம் அடைகிறோம். आपको आप हर एक को फिर एक बार इस वीडियो के द्वारा मिलते हैं, इसके बाद परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। இதுல யூடியூப்ல போடுவதற்கு इसमें YouTube में डालने के लिए நாங்கள் அதிகமாக பிரயாசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். हम लोग अधिक प्रयास करते हैं। அதாவது நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவாங்க तमिल में कहते हैं வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் என்று சொன்னது போல जो एक सामर्थ्य व्यक्ति है उसके हाथ में घास दिए तो भी वो सामर्थ्य है। அதே மாதிரி எங்கிட்ட பெரிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் கிடையாது. उसके अनुसार हमारे पास कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं எந்த है, பிஎஸ் சிஸ்டமும் இல்ல. कोई पीएस सिस्टम नहीं है। கர்த்தர் தந்திருக்கிறதான சோதரம் காரியங்களை வைத்து परमेश्वर ने जो हमें दिया है அதை வைத்து தான் நாங்க இந்த யூடியூப்ல இந்த காரியங்களை போட்டு கொண்டு இருக்கிறோம். उसे लेकर ही YouTube में इन कार्य को डाल रहे हैं। அதே வருங்காலத்தில் நீங்க அதற்காக ஜெபித்துக் கொள்ள வேண்டும். आने वाले समयों में इस कार्य के लिए प्रार्थना நல்ல कीजिए। எல்லா சிஸ்டங்களை வாங்கி इसका हर एक सिस्टम खरीद कर சோதரம் இதற்கான காரியங்களை செய்யும்படியாக इसके योग्य कार्य हम लोग करने के लिए தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக परमेश्वर के नाम की महिमा होने के लिए நீங்க ஜெபிக்கும்படி அன்போடு நான் आप கேட்டுக்கொள்கிறேன். लोग प्रार्थना करने के लिए आपसे विनती करते हैं। எப்படியாவது கர்த்தருடைய வார்த்தையை ஜனங்களுக்குள்ளாக போதிக்க வேண்டும் என்று வாஞ்சை இருக்கிறபடினால इस तरह से भी परमेश्वर की वचन को लोगों के अंदर सिखाना है और चाहत है, इसलिए அதற்காக நாங்கள் பிரயாசப்பட்டு நாங்கள் அதற்காக இந்த காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். इसलिए उसके योग्य प्रयास लेकर ये कार्य हम लोग कर रहे हैं। இதற்காக உதவி செய்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். इसके लिए मदद किए हुए हर एक बच्चों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। அவர்களும் எவ்வளவு படித்து இருக்கிறாங்களோ वो लोग भी जितना वो लोग पढ़े हैं அந்த ஞானத்திற்கு ஏற்றபடியாக उस ज्ञान की योग्य கர்த்தர் கொடுத்ததான கிருபையினால परमेश्वर ने दिया अनुग्रह से இந்த யூடியூப்ல போடும்படியாக கர்த்தர் அவர்களுக்கு ஞானத்தை கொடுத்திருக்கிறார். इस यूट्यूब में डालने के लिए परमेश्वर ने ज्ञान दिया। இதற்கு உதவி செய்த इसके लिए मदद किए हुए இதற்கு பாடுபட்ட इसके लिए जो मेहनत किए हैं அந்த ஒரு சில வாலிபர்கள் कुछ जवान लोग மற்றும் ஒரு சில குடும்பங்கள் और कुछ परिवार लोग அவர்களை கர்த்தர் அதிகமாக ஆசீர்வதிப்பாராக. उन्हें परमेश्वर अधिक आशीष करे। ஹalleluya. हालेलुया। அதற்கேற்ற பலனை கர்த்தர் உங்களுக்கு வரும் நாட்களிலே கொடுப்பாராக. क्योंकि योग्य फल परमेश्वर उन्हें आने वाले जीवन में उन्हें देगा। கர்த்தர் ஜீவன் உள்ளவர். परमेश्वर जीवित है। நம்ம சோதரம் இதுவரைக்குமா கர்த்தர் நடத்தி கொண்டு अब வந்திருக்கிறார். तक परमेश्वर में चला कर आया है। சோதரம் இந்த கொரோனா வைரஸ் முற்றிலுமாக தேசத்தை விட்டு அழியும்படியாக ये कोरोना वायरस पूरी तरह से हमारे देश से हटने के ஒரு लिए பெரிய விடுதலையும் ஒரு மீட்பை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக एक बड़े छुटकारा को हम लोग पाने के நம்முடைய लिए சபையெல்லாம் திறக்கப்படத்தக்கதாக हमारे कलिसिया सब खुलने के लिए தொழில்கள் எல்லாம் திறக்கப்படத்தக்கதாக धंधे सब खुलने के लिए வேலைகள் எல்லாம் தொடங்கத்தக்கதாக काम सब आरंभ होने के लिए கர்த்தர் தாமே அதற்கு அனுகிரகம் செய்வாராக. परमेश्वर ही उसके लिए अनुग्रह करे। விசேஷமாக நீங்க உங்க ஜெபத்துல ஊழியர்களை அதிகமாக நீங்க ஜெபத்துல தாங்க வேண்டும். विशेष रीति से आपकी प्रार्थना में सेवकों के लिए अधिक रीति से प्रार्थना அன்னைக்கு நம்ம कीजिए। தமிழ்நாட்டிலையும் மற்ற இடங்களிலும் ஒரு சில ஊழியர்கள் இந்த கொரோனா வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள், இறந்தும் இருக்கிறார்கள். आज हमारे तमिलनाडु में और बाकी जगहों में भी कुछ सेवक लोग इस कोरोना वायरस के द्वारा पीड़ित है और कुछ लोग गुजर भी गए हैं। தேவனுடைய பிள்ளைகளும் இதுல பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள். परमेश्वर के लोग भी इसके द्वारा पीड़ित हैं। நீங்கள் அவர்களுக்காக விசேஷமாக ஜெபிக்கும்படியாக ஒரு அன்புடன் நான் आप கேட்டுக்கொள்கிறேன். लोग हर एक के लिए विशेष रीति से प्रार्थना करने के लिए आपसे विनती करते हैं। அருமையான ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் ஜே.ஜே.ஒய் அருள் अच्छे एक परमेश्वर की व्यक्ति जे.जे.वाई अरुण जी மதுரையில கர்த்தருடைய ஊழியத்தை அவர்கள் செய்து கொண்டு வந்திருந்தார்கள். मधुरई में परमेश्वर की सेवकाई वो लोग करते थे। கடந்த நாட்களிலே கர்த்தருக்குள்ளாக அவர்கள் மரித்து விட்டார்கள். पिछले दिनों में परमेश्वर के अंदर गुजर இந்த गए। கொரோனா வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்டு इस कोरोना वायरस के द्वारा इफेक्ट होकर கர்த்தருக்குள்ளா நித்திரை அடைந்திருக்கிறார்கள். परमेश्वर के अंदर गुजर गए हैं। அவர்களை குறித்து சொல்லுவது எனக்கு மிகவும் சந்தோஷம். उनके बारे में कुछ कार्य बताना बहुत ही आनंदित है। நம்முடைய தலைமை சபையில வைத்து 2010ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 28ஆம் தேதி அவர்கள் தான் எனக்கு இந்த பாஸ்டர் அபிஷேக பட்டத்தை அவர்கள் கொடுத்தார்கள். हमारी जो बड़ी कलीसिया है वहाँ पर नवंबर 28 की तारीख में वही हमें पास्टर की ऑडिशन दिए थे। கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டுகள் ஆக போகிறது. लगभग 10 वर्ष हो चुका है। அவர்கள் இறந்து விட்டான செய்தி கேட்ட உடனே वो गुजर गए, वो समाचार सुनते ही கொஞ்சம் மனதிற்கு கஷ்டமா இருந்தாலும் मन में थोड़ा कष्ट हो तो भी ஆனால் கர்த்தருக்குள்ள அவர்கள் பரலோகத்தில் மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். लेकिन फिर भी परमेश्वर के अंदर स्वर्ग में वो आनंदित கர்த்தர் हैं। அவருடைய குடும்பத்தை ஆறுதல் படுத்துவாராக. परमेश्वर की
परिवार को दिलासा दे, அவர்கள் குடும்பத்தை கர்த்தர் பலப்படுத்துவாராக. उनके परिवार को परमेश्वर बल दे, அவர்கள் குடும்பத்தில் உள்ள ஊழியங்கள் தொடர்ந்து நடைபெறும்படியாக उनकी सेवकाई लगातार चलने के लिए நீங்கள் அருமையான போதகருக்காக நீங்க ஜெபித்து அன்புடன் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். अच्छे सेवक के और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए विनती करते அது हैं। மாத்திரமல்ல ஒரு சில ஊழியர்கள் கூட இதனால பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறாங்க. उतना ही नहीं, कुछ सेवक लोग भी इसके द्वारा पीड़ित हैं। அந்த மும்பையிலும் மரித்து இருக்கிறார்கள். हमारे मुंबई में भी गुजरे நீங்க हैं। அதற்காக ஊழியர்களுக்காக ஊழியர் குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கும்படியாக உங்களை நான் மிக தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். इसलिए इन सेवकों के लिए, उनके परिवारों के लिए आपको प्रार्थना करने के लिए हम आपसे मांग लेते हैं। கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर ही आप सबको आशीष நாம் दे। இப்பொழுது கர்த்தருடைய வசனத்துக்குள்ளாக கடந்து हम செல்லுவோம். अभी परमेश्वर के वचन की ओर இது बढ़ेंगे। மிகவும் முக்கியமான ஒரு சமயத்துக்குள்ளாக வந்திருக்கிறோம். एक बहुत ही मुख्य समय में हम लोग आए हैं। ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசுகிற ஒரு நேரம். परमेश्वर हमसे बातें करने वाली समय, ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இடைபடுகிற நேரம். परमेश्वर हमसे मिलने वाला ये समय। அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு प्रेरित पत्रस அந்த அந்த எழுப்புதல் காலங்களிலே उस जो जिलावट के दिनों में, அந்த பெந்தேகோஸ்து நாட்களிலே बेंतेकोस्त के दिनों में ஒரு அக்கினி அங்க ஊற்றப்பட்ட சமயத்துல वहाँ पर जब एक अग्नि उड़ेला गया था, நம்முடைய ஜனங்கள் மத்தியிலாக பேசும் பொழுது वहाँ के लोगों के बीच में बात करते समय அங்க வேதவசனம் சொல்லுகிறது वहाँ पर पवित्र वचन कहता அந்த है ஜனங்கள் இருதயத்திலே वो குத்தப்பட்டவர்களாக लोग हृदय में अफेक्ट किए हुए ரட்சிக்கப்படுவதற்கு उद्धार पाने के लिए நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார்கள். हम लोग क्या करना चाहिए करके वो लोग पूछे। நம்முடைய வேதவசனம் இருபுறம் உள்ள கருக்குள்ள பட்டயம். हमारा पवित्र वचन जो है दो धारी तलवार है, சோதரம் ஒரே விதமாக நம்மோடு பேசுகிறது இல்லை. एक ही बारे में हमसे बातें नहीं வித்தியா करता। வித்தியாசமான முறையில பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மோடு கூட அவர் பேசுவார். अलग अलग रीति से पवित्र आत्मा हमसे बातें करता சில है। நேரங்களில ஆறுதல் வழியாக பேசலாம், कुछ समयों में हमसे दिलासा देकर बातें करता है, வாக்குத்தத்தங்கள் வழியாக பேசலாம், प्रतिज्ञाएं देकर बातें करता है, சிலரை கண்டித்து பேசலாம். कुछ समय हमें चिल्लाकर बोलता है। எப்படி நம்மோடு கூட ஆவியானவர் பேசினாலும் जिस तरह से भी पवित्र आत्मा हमसे बातें करे, நாம் அதை சந்தோஷத்தோடு கூட நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். हमें उसे आनंद के साथ अपनाना ஏனென்று चाहिए। சொன்னால் क्यों? கர்த்தர் அவர் ஜீவனுள்ள வார்த்தை மூலம் அவர் பேசி இருக்கிறார். परमेश्वर हमसे जीवन की वचन के द्वारा बातें करता நம்மளை है। கண்டிப்ப அவருக்கு உரிமை உண்டு. हमें दंड देने के लिए भी उसके अधिकार நம்மளை है। கண்டித்து பேச அவருக்கு உரிமை உண்டு. हमसे चिल्लाकर बोलने के लिए भी उसके पास अधिकार ஏனென்று है। சொன்னால் क्यों? நம்முடைய தகப்பன் அவர், वो हमारा पिता है, நாமோடைய हम பிள்ளைகள். उसके बच्चे हैं। அதனால கர்த்தருடைய வார்த்தை எப்படி तो வந்தாலும் इसलिए परमेश्वर का वचन कैसा भी आए, நாம் அதை ஏற்றுக்கொண்டு हम उसे अपनाकर, அதை அங்கீகரித்து उसे अंगीकार करके, நாம் அதை ஜெபித்து நாம் அதற்கு அந்த வசனத்தில் நடக்க நம்ம ஒப்பு கொடுக்க हम வேண்டும். प्रार्थना करके उस वचन के अनुसार चलने के लिए अर्पण करना चाहिए। ஆமென். हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தர் உங்களை அதிகமா பலப்படுத்துவாராக. परमेश्वर आपको अधिक बलवंत சரி, करे। இன்றைக்கும் கர்த்தர் ஒரு சில வார்த்தை மூலமா கர்த்தர் நம்மோடு இடைபடுவாராக. आज भी परमेश्वर कुछ कार्यों के द्वारा हमसे बातें நீங்க करेगा। ஜெப நிலையில் இருக்கும்படியாக உங்களை நான் தாழ்மையுடன் நான் आप கேட்டுக்கொள்கிறேன். लोग प्रार्थना की स्थिति में रहने के लिए आपसे विनती करते சோதன हैं। கர்த்தர் பெரியவர். हमारा परमेश्वर महान ஒரு है। வசனம் வாசிக்கலாம். एक वचन पढ़ेंगे, நீதிமொழிகள் नीति वचन की पुस्तक, அதனுடைய 6ஆம் அதிகாரம் उसका 6वां अध्याय 27 28 அங்க சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. 27 28 में कहा गया है। நான் தமிழ்ல மொழியில படிக்கிறேன். तमिल में पढ़ेंगे, அதற்கு பிற்பாடு ஜோஸ் இந்தியில படிப்பாங்க. उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे। நீதிமொழிகள் नीति वचन 6ஆம் அதிகாரம் 6वां अध्याय 27 28. 27 और 28। தன் வஸ்திரம் வேகாமல் மடியிலே எவனாவது நெருப்பை வைத்துக் கொள்ள கூடுமோ, தன் கால் சுடாமல் எவனாவது தலையின் மேல் நடக்க கூடுமோ. क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव न झुलसे? Praise the Lord. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை परमेश्वर के உண்டாவதாக. पवित्र नाम की महिमा हो। சாலமோன் ஆகிய ஞானி இந்த நீதிமொழிகளில ஒரு வசனத்தை சொல்ல பார்க்க முடிகிறது. सुलोमन ज्ञानी इस नीति वचन में एक वचन लिखा है, हम देखते हैं। தன் வஸ்திரம் வேகாமல் மடியிலே எவனாவது நெருப்பை வைத்துக் கொள்ள கூடுமோ. अपने कपड़े न जलते हुए अपने छाती पर कोई आग को रख सकता है क्या? சோதரம், நெருப்பு என்று சொன்னாலே அது எல்லாருக்கும் பயமாக காணப்படும். आग ऐसा बोला तो ही अनेक लोग को भयभीत हो सकता है। நெருப்பை யாருமே மடியில வைப்பதற்கு விரும்ப மாட்டார்கள். आग को कोई भी अपने पास रखने के लिए नहीं चाहता है। சோதரம், நெருப்பு என்று சொன்னாலே அது பெரிய பாதிப்பையும் அது ஒரு இழப்பையும் அது கொண்டு வரும். आग ऐसा बोला तो ही बहुत संघर्ष या कष्ट को लेकर आती है। தன் கால் சுடாமல் எவனாவது தலையின் மேல் நடக்க கூடுமோ. अपने पाँव न
जलते हुए कोई अंगारे पर चल सकता है क्या? தணல் மேல் நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் अगर आग के ऊपर चलना है तो தன்னுடைய காலது சுடும், அது சுடும், அது अपना पैर उसमें जल सकता அது है, வெந்து போகும் என்று நம்ம பார்க்க முடியும். उसमें चोट आ सकती है क्योंकि हम देखते हैं தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நம்முடைய வாழ்க்கையில परमेश्वर के लोग हमारे जीवन நாம் में கடந்த நாட்களில் हमारे पिछले दिनों में கர்த்தர் நம்மோடு கூட வாக்குத்த வசனங்களை பேசினார். परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की वचन बातें किया, சோத்திரம். நம்முடைய சத்துருக்களை பார்க்கிலும் हमारे शत्रुओं से भी கர்த்தர் நம்மளை பலவான்களாக அவர் ஆக்கி இருக்கிறார். परमेश्वर ने हमें बलवंत बनाया है இந்த பலவான்களாக அவர் மாற்றுவார். या बलवंत हमें बनाएगा। கர்த்தர் நம்மளை அவ்வாறாக செய்கிற தேவன். परमेश्वर इस तरह से हमें करता है, சத்துருக்களை பார்க்கிலும் பலவானாக மாற்றுவார். शत्रुओं से भी वो हमें बलवंत बनाएगा। அது மாத்திரமல்ல, அதிகமாக பழுக பெருக பண்ணுவார். इतना ही नहीं हमें और वो बलवंत फलवंत बनाएगा। இன்றைக்கு ஒரு மனுஷனை குறித்து நான் உங்களோடு கூட நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். आज एक मनुष्य के बारे में आपसे हम बातें करना चाहते हैं। சோத்ரம். அவருடைய பேர் சிம்சோன். उसका नाम है सिमसोन। சிம்சோன் வந்து மகா பலவான் என்று அவனை குறித்து சொல்லலாம். सिमसोन के बारे में हम पढ़ते हैं कि बड़ा वो शूरवीर था। சோத்ரம். சிம்சோனை குறித்து உங்களுக்கு நன்றாக அறிந்திருக்கலாம். सिमसोन के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। சோத்ரம். அதாவது வஸ்திரம் வேகாமல் उसका वस्त्र न जलते हुए மடியில எவனாவது நெருப்பை வைத்துக் கொள்ளக்கூடுமோ? अपने छाती में कोई आग को रख सकता है क्या? பரிசுத்த வாழ்க்கை குறித்து நாம் அதிக ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக காணப்பட வேண்டும். पवित्र जीवन के बारे में हमें अधिक जागरूक रहना है। சோத்ரம். அசுத்தமான தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள், अशुद्ध देवताओं के लिए जो अप्रिय कार्य है, சோத்ரம். அசுத்தமான அந்த பாவங்கள், अशुद्ध पाप, சோத்ரம். மற்ற இன்டர்நெட் மூலமாக, इंटरनेट के द्वारा, Facebook மூலமாக, फेसबुक के द्वारा, சோத்ரம். வாட்ஸ்அப் மூலமாக, व्हाट्सएप के द्वारा இன்றைக்கு இந்த உலகம் முழுவதுமாக ஒரு பாவத்துக்குள்ளாக, आज संसार पूरा पाप के अंदर அதாவது தன்னுடைய மடியிலே अपने छाती पर சோத்ரம் நெருப்பை வைத்துக்கொண்டு, ஒரு பாவத்தை வைத்துக்கொண்டு இன்னைக்கு பாவத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஜனங்களை பார்க்க முடியும். एक पाप को अपने अंदर रखकर जीने वाले लोगों को हम लोग देख सकते हैं। இவனுக்கு சிம்சோன் ஒரு மகா பலவான். सिमसोन जो है महाबलवंत था। சோத்ரம். சிம்சோன் வந்து सिमसोन जो है தன்னுடைய மடியிலே अपने छाती पर சோத்ரம் நெருப்பை அவன் வைத்துக் கொண்டவனாக. आग को ले चलते हुए, நெருப்புன்னு சொல்லுதீங்களா? आग करके बोलते இந்த हैं। வசனத்தின் முடிவில் அதனுடைய உங்களுக்கு அர்த்தங்கள் புரியும். इस वचन के अंत में उसका अर्थ आपको पता चलेगा। சோத்ரம். சிம்சோன் என்று சொன்னால் सिमसोन करके बोले तो அவனுக்கு ஒரு பெயர் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. उसको एक नाम दिया गया है। சிம்சோன் என்றால் சூரியனை போன்றவன். सिमसोन करके बोला तो सूर्य के समान व्यक्ति, பிரைஸ் அல்லாஹ். हालेलुया। அவன் சூரியனை போன்றவன். वो सूर्य के समान था। நீங்க சிம்சோனுடைய சோத்ரம் காரியங்களை நீங்க பார்க்கும் பொழுது सिमसोन की कार्यों को आप पढ़ेंगे तो நியாயாதிபதிகள் 13 இருந்து அந்த 16 அதிகாரத்துல न्यायों की पुस्तक 13 से 16 तक சிம்சோனுடையதான காரியங்களை, सिमसोन की कार्यों को, அவனுடைய பெற்றோர் யார், उसके माता पिता कौन, எப்படிப்பட்டவர்கள், किस प्रकार के लोग, அவர்கள் கர்த்தரை தரிசனமானவர்கள், परमेश्वर को दर्शन पाए हुए लोग, கர்த்தர் அவருடைய தரிசனமானார் परमेश्वर से दर्शन हुआ। என்று சொல்லி அந்த 13ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து इस तरह से 13वां अध्याय நீங்க 16ஆம் அதிகாரம் வரைக்குமாக இந்த காரியத்தை பார்க்க और முடியும். 16 अध्याय तक आप लोग देख सकते हैं। இந்த நியாயாதிபதிகள் 16ஆம் அதிகாரம் न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय அதிலே 19 20 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. उसका 19 और 20 में कहा गया है, அவனை தன் மடியிலே நித்திரை பண்ணி वो उसे अपने मांडी में सुलाकर, ஒருவனை அழைத்து एक को बुलाकर, அவன் தலைமயிரின் 7 ஜாடைகளையும் उसके सिर की 7 जो बालों को அவனை சிறை பிடித்து उसको पकड़कर அவனை சிறுமைப்படுத்த தொடங்கினாள். उसको वो पकड़वा दी। அவன் பலம் அவனை விட்டு நீங்கி விட்டது. उसका बल उसको छोड़कर चला गया। ஹalleluya. हालेलुया। அவனுடைய பலம் அவன் நீங்கி விட்டது. उसका बल उसको छोड़कर चला गया। அப்பொழுது அவன் तब वो, சிம்சோனே, हे सिमसोन, பெலிஸ்தர் உன்மேல் வந்து விட்டார்கள் என்றாள். फिलिस्तीय लोग तेरे ऊपर आ गए करके कहा। அவன் நித்திரை விட்டு விழித்து और वो नींद से उठकर கர்த்தர் தன்னை விட்டு விலகினதை परमेश्वर से अलग हो गए, அவன் அறியாமல் वो न जानते हुए எப்போதும் போல உதறி போட்டு போவேன் என்றான். हमेशा
हमेशा की तरह उसको गिराकर जाऊंगा करके कहा। ஹalleluya. हालेलुया। எப்பொழுதும் போல நான் உதறி போட்டு போவேன் என்று சொல்ல பார்க்க முடிகிறது. हर बार की समान उनको मैं हटाकर जाऊंगा करके कहा गया है। இந்த சிம்சோன் यह सिमसोन இவன் சூரியனை போன்றவன். ये सूर्य के समान था। இவனை குறித்து வேதவசனத்துல நாம ஒரு சில காரியங்களை படிக்க முடியும். इसके बारे में पवित्र वचन में कुछ कार्य हम लोग पढ़ सकते हैं। சிம்சோன் வந்து सिमसोन जो है சோதரம் ஆண்டவரால அவன் சோதரம் அழைக்கப்பட்டவன். परमेश्वर से बुलाया हुआ एक व्यक्ति। இவனுடைய வாழ்க்கையை பாருங்க. इसके जीवन को देखिए। சோதரம் அவனை தன் மடியில நித்திரை பண்ணி उसको अपने मांडी में सुलाकर அங்க அழைத்து उसको बुलाकर அவன் தலை மயிரின் 7 ஜாடைகளையும் சிறைபிடித்து அவனை சிறுமைப்படுத்த தொடங்கினான் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. उसके सर के बालों को काटकर उसको दबोचने लगे करके हम लोग पढ़ते हैं। இவன் வந்து ஒரு பலவான். ये एक बलवान है। இவன் ஒரு பலவானா காணப்பட்டான். ये एक बलवान था। ஆனா பாருங்க சோதரம் இந்த சிம்சோன் வந்து लेकिन ये सिमसोन जो है தெளிலால மடியில போய் படுத்து கிடக்கான். दलीला की नामक स्त्री के मांडी में जाकर सोया है। சோதரம் ஒரு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன். अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति தேவனால சோதரம் விசேஷமான ஒரு न्यायाधिपतिயுடையதான ஒரு இடத்துல வைக்கப்பட்டவன். परमेश्वर के द्वारा विशेष जगह में एक न्यायाधिपति के स्थान पर रखा हुआ एक ஆனால் व्यक्ति। இவனை பாருங்க लेकिन ये व्यक्ति தெளிலால் மடியில அங்க படுத்துக்கொண்டு இருக்கிறான். दलीला के मांडी में जाकर सो पड़ा है। தெளிலால் மடியில படுத்துக்கொண்டு दलीला की मांडी में सोकर சோதரம் அங்க சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. वहां पर कहा गया है அவனுடைய தலை மயிரின் 7 ஜாடைகளின் சிறைபிடித்தார்கள். उसके सर के बालों को वो लोग काट दिए। அவனை சிறுமைப்படுத்த தொடங்கினார்கள். उसको दबोचने लगे। அவன் பலம் அவனை விட்டு நீங்கிற்று. उसका बल उससे हट गया। நீங்க இந்த நியாயாதிபதிகள் 15ஆம் அதிகாரம் 16 வாங்கி வாசித்து பார்க்க வேண்டும் சொன்னால் न्याय की पुस्तक की 15 और 16 अध्याय आप पढ़ेंगे तो அவனுடையதான சோதரம் காரியங்களை நன்றாக படித்துக் கொள்ள முடியும். उसके कार्य को आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। நீங்கள் உங்களுக்கு சமயம் கிடைத்தால் आपको समय मिलेगा तब இந்த அதிகாரம் கொஞ்சம் படித்து நீங்க பார்க்க முடியும். அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். न्याय को ध्यान करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। பாருங்க பெலிஸ்தர் அவனை பிடிக்க அவர்கள் வகை தேடுகிறார்கள். फलिस्ती लोग उसे पकड़ने के लिए मार्ग ढूंढ रहे அவனுடைய थे। பலம் எப்படியா இருக்கிறது, उसका बल कैसा है, அவன் எப்படிப்பட்டதான பலத்தை உடையவனாக காணப்படுகிறான் என்று சொல்லி इस प्रकार की बल उसके अंदर है करके அவனை அறியும்படியாக அவனை பிடிக்க வகை தேடினார்கள். उसको पकड़ने के लिए वो लोग रास्ता ढूंढ रहे थे। ஆனால் இந்த சிம்சோன் लेकिन ये शिमशोन பாருங்க தெளிலால் மடியில அங்க படுத்திருக்கிறான். दलीला की मांडी में सोया है। சோத்ரம் இது ஆண்டவருக்கு ஒரு பிரியமில்லாத ये காரியம். परमेश्वर का अप्रिय कार्य है। இவனை கொண்டு ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்யும்படியாக விரும்பினார். इसे देखकर परमेश्वर बड़े कार्य करना चाहा। அவன் சொல்லுகிறான், वो कहता है அவன் நித்திரை விட்டு விழித்து பார்க்கிறான். वो नींद से उठकर देखता है। விழித்து பார்த்தான், उठकर देखा तो கர்த்தர் அவனை விட்டு நீங்கி விட்டார். परमेश्वर उससे छोड़कर अलग हो चुका அவனை है। விட்டு விலகி போய் விட்டார். उससे छोड़कर चला जा चुका है। அவன் எப்போதும் போல वो हमेशा की तरह உதறி போட்டு போவென்று சொல்லி பிரயாசப்படுதான். उनको गिराकर मैं जाऊंगा करके प्रयास करता ஆனால் है, அவனால போக முடியவில்லை. लेकिन उससे नहीं होता है। ஆண்டவர் சத்துருவை பார்க்கிலும் பலவானாங்களை மாற்ற வல்லமை உள்ளவர். परमेश्वर हमें शत्रुओं से बलवान बनाने के लिए सामर्थ्य है। ஆனால் लेकिन நம்முடைய பலத்தை குறித்து हमारे बल के நாம் सामने அக்கறையற்றவர்களாக இருப்போம் என்று சொன்னால் अगर हम लोग उसमें ध्यान नहीं दिए तो பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்ததான ஒரு அக்கறை நமக்குள்ள இல்லை என்று சொன்னால் पवित्र आत्मा के बारे में कुछ ज्ञान हमें न हो तो சில நேரங்களில कुछ समयों में இப்படி பாவத்துல इस அகப்படக்கூடும். प्रकार की पाप में हम लोग दबोचे जाएंगे। Praise the Lord. Hallelujah। அவன் உதறி போட்டு போவென்று சொல்லுகிறான். वैसे गिराकर जाऊंगा करके कहता है। பெலிஸ்தர் அவனை பிடித்து फलिस्ती लोग उसे पकड़कर அவன் கண்களை பிடுங்கி उसकी आंखों को निकाल அவனை காசாக்கு கொண்டு போய் उसे कासाक में ले जाकर அவனுக்கு 2 வெண்கல விலங்குகளை போட்டு उसके ऊपर चेन से उसको पकड़कर பாருங்க இப்ப சிறைச்சாலை மாவரித்து கொண்டு இருக்கிறான். बंदीगृह में अभी वो आटा पीस ஒரு रहा है। அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன், अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति கர்த்தருடைய ஆவியினாலவன் ஏவப்பட்டு வழிநடத்தினவன். परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाया हुआ एक व्यक्ति, ஆனால் அவனுடைய வாழ்க்கையானது लेकिन उसकी जीवन இன்றைக்கு சிறைச்சாலையில அவன் அகப்பட்டு आज जो बंदीगृह में बंधा जाता அவன் है, மாவரைத்து அவன் वो கொண்டிருக்கிறான்.
आज आटा पीस रहा है। தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के लोगों, ஆண்டவர் நம்மளை பலவானாக மாற்றி இருக்கிறார். परमेश्वर हमें बलवान बनाया है। நமக்குள்ளாக ஒரு பரிசுத்த ஆவியை அவர் கொடுத்திருக்கிறார். हमारे अंदर वो एक पवित्र आत्मा को दिया है। பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மளை வழிநடத்த நம்மை ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டும். पवित्र आत्मा में चलाने के लिए अर्पण करना है। கர்த்தர் அவனை விட்டு விலகின உடனே परमेश्वर से अलग होते ही அங்க கர்த்தருடைய ஆவி அவனை விட்டு விலகிற்று. वहाँ परमेश्वर की आत्माओं से अलग हो गए। பாருங்கவன் அந்த தெளிலால் மடியிலே और दलीला की मांडी में அவன் ஒரு மெய் மறந்தவனாக காணப்பட்டு वो கொண்டிருக்கிறான். ऐसे अपने आप को भूलकर सोया है। சோதரம் என்ன நடக்குது அவனுக்கு தெரியவில்லை. क्या हो रहा है उसे नहीं पता। அவனோட வாழ்க்கையில என்ன சம்பவம் நடக்கிறது, उसके जीवन में क्या संभव हो रहा है, என்னென்ன செய்து கொண்டு वे இருக்கிறார்கள், लोग क्या कर रहे हैं। அவனுக்கு ஒரு தேவனை குறித்ததான ஒரு எண்ணம் இல்லாதபடி परमेश्वर के बारे में कुछ ज्ञान ना होते हुए நான் ஒரு பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டவன், मैं अर्पण किया हुआ व्यक्ति, நான் ஒரு நியாயாதிபதி, मैं न्यायाधिपति हूँ, நான் ஒரு अभिषेகம் பண்ணப்பட்டவன் मैं अभिषेक किया हुआ व्यक्ति என்று हूँ। சொன்னது அந்த அறிவு இல்லாதபடிக்கு वो ज्ञान भी ना होते हुए அவன் பாருங்க वो देखिए தன்னுடைய மடியிலே अपने मांडी में ஒரு சோதன் தளலை வைத்தவனாக वो अपने मांडी में आग को रखते हुए அவனை காணப்படுவதை பார்க்க முடியும். उसके जीवन इस तरह से रही। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் சிறைச்சாலை மாவரைத்துக் கொண்டு இருக்கிறான். बंदीगृह में आटा पीस रहा है। சோதர நியாயாதிபதிகள் நீங்க 13:5 நீங்க பார்க்கும் பொழுது न्याय की पुस्तक 13 अध्याय में हम देखेंगे तो சோதர அதாவது ஆண்டவர் சோதர தரிசனமாகி परमेश्वर दर्शन होकर அந்த மனோவாவுக்கும் அவரோட மனைவிக்கு அங்க வெளிப்படுகிறார். मनवा और उसकी पत्नी को दर्शन देता நீ है। கர்ப்பம் தரித்து गर्भवती होकर ஒரு குமாரனை பெறுவார். एक पुत्र को जनेगी। அவன் தலையின் மேல் சவரன் கத்தி படலாகாது. उसके सर के ऊपर तो चाकू न डालना। அந்த பிள்ளை பிறந்தது முதல் उस बच्चा जन्म होते ही தேவனுக்கென்று நசரேனாய் இருப்பான். परमेश्वर के लिए उसे बनाए அவன் रखना। இஸ்ரவேலின் பெலிஸ்தர் கைக்கு நீங்களாக்கி ரட்சிக்க தொடங்குவான் என்றார். और इजराइल को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा करके कहा गया। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। என்ன சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது? या क्या कहा गया है? அவன் தேவனுக்கு என்று சோதரம் பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டவன். परमेश्वर के लिए प्रतिष्ठा किया हुआ एक व्यक्ति, கர்த்தருடைய தூதனானவர் परमेश्वर का दूत அந்த ஸ்திரீக்கு தரிசனமானார். वो स्त्री को दर्शन दिया। நீ ஒரு குமாரனை பெறுவாய். तू एक पुत्र जनेगी। அவன் குமாரன் वो पुत्र जो है அவன் தலையின் மேல उसके सर के ऊपर சவரன் கத்தி படலாகாது. उसके ऊपर कुछ छुरी न डालना। தேவனுக்கென்று நசரேனாய் இருப்பான் என்று சொல்லி परमेश्वर के लिए इस तरह से वो रहेगा அவன் करके இஸ்ரவேலை वो इजराइल को பெலிஸ்தரின் கைக்கு நீங்களாக ரட்சிக்க தொடங்குவான் என்றார். फलिस्ती की हाथ से बचाने वाला रहेगा करके कहा गया பாருங்க, है। அவன் பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டவன். प्रतिष्ठित किया हुआ एक व्यक्ति, தேவனால் சோதரம் அவன் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன். परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ एक व्यक्ति, இஸ்ரவேல் ஜனங்களை इजराइल के लोगों அந்த को பெலிஸ்தரின் கைகளுக்கு நீங்களாக்கும்படியாக फलिस्ती के हाथों से छुड़ाने के लिए சோதரம் கர்த்தர் அவனை தெரிந்து கொண்டார். परमेश्वर ने उसे चुना है। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। அங்க பாருங்க, ஆனா கர்த்தருடையதான அந்த திட்டத்தை, लेकिन परमेश्वर की उस सोच को, அந்த நோக்கத்தை उस कार्यों को இவன் அறியாதபடிக்கு ये ना जानते हुए தெளிலால் மடியில் அங்க படுத்துக் दलीला கொண்டிருக்கிறான். की मांडी में सोया है। Praise the Lord. हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के लोगों, நம்மளை ஆண்டவர் இந்த உலகத்துல ரட்சித்ததற்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு. परमेश्वर हमें संसार में उद्धार देने के लिए एक सोच है। ஊழியத்துல நம்மை அழைப்பதற்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு. सेवकाई में हमें बुलाया है तो उसके लिए परमेश्वर के पास एक प्लान है। நமக்கு பரிசுத்த ஆவியை தந்திருக்கார் என்று சொன்னால், अगर हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है அவர் तो ஆவியினாலே நடத்தப்படுவதற்கு நமக்கு கிருபை கொடுத்திருக்கார் என்று उसकी சொன்னால், आत्मा के द्वारा चलने के लिए हमें अनुग्रह दिया है तो இன்றைக்கு நம்மை கொண்டு आज हमें இந்த देखकर தேசத்திலே इस देश में ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று இருதயம் துடித்துக் கொண்டு कुछ இருக்கிறது. ना कुछ करना है करके हृदय तड़प रहा है। ஆனா இன்னைக்கு लेकिन आज தேவனுடைய பிள்ளை என்று சொல்லுகிறவர்கள் சிலர், परमेश्वर के लोग ऐसे बोलने वाले कुछ, ஊழியம் என்று சொல்லுகிறவர்கள் சிலர் सेवकाई करके बोलने वाले कुछ தன்னுடைய மடியிலே अपने मांडी में इस சோதரம் அதாவது தளலை வைத்துக் கொண்டு तरह இருக்கிறார்கள். से आग को लेकर घूम रहे हैं। சிம்சனை போல இன்னைக்கு ஒரு பாவத்துல அகப்பட்டு கொண்டிருப்பதை நம்மளால பார்க்க முடியும். शिमशोन के समान एक पाप में वो लोग जकड़ गए हैं करके हम देख ஒரு सकते हैं। பாவத்திலிருந்து அவர்களுக்கு ஜெயம் கிடைக்காதபடிக்கு, एक पाप से वो लोग जय न पाते हुए, பாவத்திலிருந்து ஒரு விடுதலை கிடைக்காதபடிக்கு पाप से छुटकारा न पाते हुए, சோதரம் இன்னைக்கு தன்னை தானே அவர்கள் சோதரம்
பாவத்திற்கு உட்படுத்தி अपने आप को वो लोग पाप में अर्पण कर कर இன்னைக்கு இந்த காரியங்களை செய்து நம்ம பார்க்க முடியும். आज ये कार्य को लोग कर रहे हैं. ஹalleluya. हालेलुया. இந்த சிம்சன் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. सिमसोन के कार्य को कहा गया இவன் है பராக்கிரமசாலியும் पराक्रमशाली, இவன் பிரதிஷ்டை ये பண்ணப்பட்டவன், अर्पण किया हुआ एक व्यक्ति, இவன் நியாயாதிபதியாக ये காணப்பட்டான். एक न्यायाधिपति है. ஆனால் சிம்சனோ लेकिन सिमसोन புத்தியினமாய் अपनी बुद्धि से अनजान அக்கினியை अग्नि को அவன் கட்டி கொண்டு அவன் படுத்துக் अपने கொண்டிருந்தான். मांडी में बांध कर वो सोया पड़ा है. எவ்வளவு பரிதாபமான ஒரு காரியம். कितनी बुरी एक स्थिति है. இவன் செய்த இந்த புத்தியினமான காரியம் ये इस तरह के करने वाले एक कार्य ஆண்டவருடைய திட்டத்தை முற்றிலுமாக அழித்து போட்டது. परमेश्वर की प्लान को पूरी तरह से वो हटा दिया. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के लोगों, இந்த வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறவர்களே, इस वचन को सुनने वाले, நீ யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்லை, आप लोग कोई भी हो तो चलेगा. நீங்கள் கர்த்தரால் அழைக்கப்பட்டவர்கள், आप लोग परमेश्वर से बुलाए गए हो, கர்த்தரால் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள், परमेश्वर से चुने हुए ஒரு लोग, பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் நம்ம இந்த உலகத்தில் एक வைத்திருக்கிறார். प्रतिष्ठित जीवन जीने के लिए परमेश्वर में संसार में रखा நாம் है. சில நேரங்களிலே और कुछ समयों में நாம் புத்தியினமான காரியங்களை செய்வதனால, हम बुद्धि को छोड़कर करने वाले कार्य को, ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை செய்ததனால परमेश्वर का अप्रिय कार्य किए इसलिए பாருங்க தேவனுடைய நோக்கத்தை நாம இழந்து விடுகிறோம். परमेश्वर की सोच को हम लोग भूल गए. Praise the Lord. Hallelujah. ஆண்டவருடைய திட்டத்தை நாம இழந்து விடுகிறோம். परमेश्वर की सोच को हम लोग खो देते அந்த हैं. பரலோகத்தின் தரிசனத்தை இழந்து விடுகிறோம். स्वर्ग राज्य को हम लोग छोड़ देते हैं. நம்முடைய பரிசுத்தமான வாழ்க்கை, हमारी पवित्र जीवन, ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற ஒரு பரிசுத்தம், परमेश्वर हमसे चाहने वाला पवित्र, ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற ஒரு சுத்தம் परमेश्वर हमसे चाहने वाली शुद्धता நம்முடைய வாழ்க்கை இல்லாதபடினால हमारे जीवन में न होने की சில निमित्त நேரங்களிலே कुछ समयों में நாம் தடுமாற்றத்தை அடைந்து हम इस கொண்டிருக்கிறோம். तरह से संघर्ष में लोग रहते हैं. இவன் ஒரு பலவான். एक बलवान है, இவனை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது, जिसके बारे में शास्त्र कहता இவன் है மகா பலவான் என்று சொல்லப்பட்டு कि இருக்கிறது. एक महाबलवान है. சரி, அதை குறித்து பார்க்கலாம் நம்ம. इसके बारे में हम लोग நீங்க देखेंगे. நியாயாதிபதிகள் 15ஆம் अब हम அதிகாரம் न्याय की पुस्तक 15वां अध्याय அந்த 13 16 வாசிப்பு என்று சொன்னால், उसका 13 से 16 आप लोग पढ़ेंगे तो பெலிஸ்தர்கள் அவனை பிடிக்கிறார்கள். फिलिस्ती लोग उसे पकड़ते हैं. பெலிஸ்தர் அவர்களை பிடித்து फिलिस्ती लोग उसे पकड़कर அவனை புது கயிறால அவனை கட்டி उसे नए रस्सी से उसे அவனை बांधकर கண்மலையிலிருந்து கொண்டு போனார்கள். उसको पहाड़ के ऊपर से लेकर गए. பாருங்க, அவனை லேகி வரைக்குமாக வந்து சேர்ந்தபோது लेगी नामक जगह पर से ले आते समय பெலிஸ்தர் அவனுக்கு விரோதமாக ஆரவாரம் பண்ணினார்கள். फिलिस्ती लोग उसके विरुद्ध ललकारने பாருங்க, लगे. சத்துரு शत्रु இன்னைக்கு அபிஷேகம் பண்ண மேல ஆரவாரம் பண்ணி கொண்டு आज இருக்கிறார். अभिषेक किए व्यक्ति के विरुद्ध ललकारते हैं. பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டவன் மேல ஆரவாரம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார். प्रतिष्ठित किए हुए लोगों के ऊपर वो लोग ललकारते हैं. பாருங்க, ஆரவாரம் பண்ணினார்கள். वो लोग इस तरह से ललकारने लगे. கர்த்தருடைய ஆவி यहोवा की आत्मा அவன் மேல் பலமா இறங்கியதனால் उसके ऊपर बल से उतरा. அவன் தன்னுடைய புயங்களினால वो अपने बाहों से அந்த கட்டியிருந்த கயிறுகள் நெருப்பிட்டப்பட்ட நூல் போலாகி उसकी रस्सी जो है आग के समान जलकर அவன் கட்டுகள் அவன் கைகளை விட்டு அறுந்து போயிற்று. और उसकी जो बांधा हुआ रस्सी सब खुल गई. உடனே तब तुरंत அவன் ஒரு கழுதையின் பச்சை தாடை எலும்பை கண்டு वो एक गधे का जबड़ा को पाकर தன் கையை நீட்டி अपने हाथ को बढ़ाकर அதை எடுத்து उसे उठाकर அதனால उसके द्वारा அவன் 1000 பேரை கொன்று उसने போட்டான். 1000 लोगों को मारा. என்ன சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது? क्या कहा गया है? கர்த்தருடைய ஆவி அவன் மேல் பலமா இறங்கினபடினால परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर बलवंत रीति से ஆண்டவன் में பலவனாக அவன் காணப்பட்டான். कोई बलवान है. சோதரம் கயிறெல்லாம் நெருப்பிட்ட நூல் போலாகி விட்டது. रस्सी सब एक आग के समान टूट पड़ी. அவனை புது கயிறால கட்டினார்கள். उसे नए रस्सी से बांधे. அவன் கை கட்டிகள் அறுந்து போயிற்று. वो सब टूट गया. உடனே தாடை எலும்பை எடுக்கண்டு तुरंत एक गधे का जबड़े को அதை लेकर அதை நீட்டி उसे लेकर அதை எடுத்து उसे उठाकर அவன் 1000 பேரை கொன்று போட்டான். 1000 लोगों को मार डाला. பெலிஸ்தர்களை கொன்று போட்டான். फिलिस्तियों को मार डाला. ஆனால் பாருங்க, लेकिन நீங்க 16 வசனத்தை கடந்து வரும் பொழுது 16 वचन में आप देखेंगे तो இப்படிப்பட்டதான சிம்சோன், इस प्रकार का एक ஒரு शिमशोन, பலவானாக காணப்பட்ட एक சிம்சோன், बलवान शिमशोन, 16 ஒன்றில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. 16 अध्याय 1 में कहा गया है சிம்சோன் காசாவுக்கு போய் शिमशोन गाजा में जाकर அங்க ஒரு வேசியை கண்டு वहाँ एक वेश्या को அங்க देखकर அவளிடத்தில் போனான்னு और சொல்லப்பட்டு उसके पास இருக்கிறது. दया करके कहा गया है. ஹalleluya. हालेलुया. எவ்வளவு பெரிய ஒரு பரிதாபமான ஒரு சூழ்நிலை. कितना एक बुरा एक स्थिति है. எவ்வளவுக்கு ஒரு சோதரம் ஒரு ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியம் செய்து கொண்டு இருக்கிறார். कितना परमेश्वर का अप्रिय कार्य वो करता है. ஆனால் இந்த சோதரம் சிம்சோன் ये एक शिमशोन இவன் பாவத்தோடு கூட விளையாடி கொண்டு இருக்கிறான். ये पाप के साथ खेल रहा ஒரு था. தேவனுடைய மனிதன் அவன். एक परमेश्वर का व्यक्ति है. ஒரு சூரியனை போல அவன் போன்றவன். एक
सूर्य के समान था वो, அப்படிப்பட்டதான மகா பலவான் उस प्रकार के महाबलवान, அவனுடைய வீழ்ச்சியானது उसके कार्य जो அவன் है செய்த புத்தினமான காரியத்தினால वो किए हुए इस बुद्धि के एक कार्य அவனுடைய को வேகமாக ஒரு வீழ்ச்சி கடந்து வந்தது. उस तरह से उसको बहुत ही तेजी से गिरा दिया गया। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளைகள் அதிக கவனத்தோடு கூட வாழ வேண்டும். परमेश्वर के लोग अधिक ज्ञान से रहना है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் பரிசுத்த வாழ்க்கைக்கு வைராக்கியமாக இருக்க வேண்டும். परमेश्वर के लोग हमें पवित्रता के लिए वैराग्य என்னை दीजिए। அழைத்த ஆண்டவர் என்னை குறித்து நோக்கம் வைத்திருக்கிறார். हमें बुलाया हुआ परमेश्वर हमारे बारे में एक सोच रखा என்னை है। அழைத்த ஆண்டவர் என்னை குறித்து பெரிய தரிசனங்களை हमें வைத்திருக்கிறார். बुलाया हुआ परमेश्वर हमारे बारे में एक दर्शन रखा என்னை है। குறித்து ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார். हमारे बारे में एक प्लान रखा இந்த है। திட்டத்தை உடைப்பதற்கு, एक प्लान को तोड़ने के இந்த लिए, தரிசனத்தை முறிப்பதற்கு इस दर्शन को गिराने के எந்த लिए, விதமான சாத்தானுடைய கிரியைகளோ, कोई भी प्रकार की शैतान की क्रिया, எந்த விதமான பாவத்துடைய கிரியைகளோ कोई भी प्रकार की पाप की क्रिया என்னை நெருங்க முடியாது என்று சொல்லி हमारे पास ना आएगी தேவனுடைய कभी। பிள்ளைகள், परमेश्वर के लोग, ஊழியர்கள் सेवक இந்த लोग நாட்கள்ல அதிகமாக நம்ம அதற்காக நம்ம பிரயாசப்பட்டு इन दिनों में अधिक उसके लिए प्रयास பரிசுத்த करते हैं। வாழ்க்கைக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். पवित्र जीवन के लिए हमें अर्पण करना है। இந்த சிம்சோன் ये शिमशोन, அவருடைய வீழ்ச்சி வேகமாக கடந்து வந்தது. उसकी जो गिरावट बहुत तेजी से आई। தன் வஸ்திரம் வேகாமல் எவனாவது अपने वस्त्रों को न जलते हुए कोई भी மடியிலே நெருப்ப வைத்துக் கொள்ள கூடுமோ என்று வேதம் சொல்லுகிறது. अपने छाती पर आग रख सकता है क्या? शास्त्र कहता அவன் है। தன் பாவத்தை உணராமல் वो अपने पाप को न जानते நான் हुए, எப்பொழுதும் கூட உதறி போட்டு போவேன் என்று சொல்லி मैं हमेशा की तरह उसे गिराकर जाऊंगा ஆனால் करके, அவனால போக முடியவில்லை. लेकिन उसके द्वारा नहीं हुआ। அவன் எல்லாருக்கும் முன்பதாக सबके सामने ஒரு வேடிக்கை பொருளாக அவன் एक காணப்பட்டான். ऐसी हंसी का एक पात्र बन गया। சிறைச்சாலை மாவரைத்துக் கொண்டிருந்தான். बंदीगृह में वो आटा पीसने लगा। அவனுடைய கண்கள் பிடுங்கப்பட்டன. उसकी आंखें निकाल दी அவனுடைய गई। நிலைமையும் மகா பரிதாபமாக उसकी காணப்பட்டது. स्थिति भी बहुत भयंकर हो அவன் गई। தன்னுடைய கடந்த காலத்தின் வெற்றியை அவன் சார்ந்திருந்தான். वो अपने पिछले समयों की जो जीत है उसको ऊपर था वो। ஆனால் நிகழ்காலத்திலே लेकिन प्रेजेंट में அவனுடைய பாவத்தில் அவன் விழுந்தான். वो पाप में गिरा। பெலிஸ்தர் அவனை பிடித்து விட்டார்கள். फलिस्ती लोग उसे पकड़ लिए। பெலிஸ்தர் மேலே ஜெயம் எடுக்கிறவன், फलिस्ती के ऊपर जय पाने वाला व्यक्ति, இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பெலிஸ்தரிடமிருந்து விடுதலையாக்கி கொண்டு வருபவன், इस्राएल के लोगों को फलिस्तियों से छुड़ाने वाला व्यक्ति, இந்த பாவத்தினால इस पाप के द्वारा அவனால ஜெயம் பெற वो முடியவில்லை. जय नहीं पा सका। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। அவன் நினைத்து விட்டான், वो सोचता நான் है மறுபடியுமாக எழுந்திருக்க முடியும், मैं फिर से उठ पाऊंगा, உதறி போட்டு போக முடியும் நினைத்தான். मुझसे गिराकर मैं जाऊंगा करके सोचा। ஆனால் लेकिन அவருடைய சிறையானது, उसकी जो कार्य है, அவனுடையதான முடியானது उसकी जो बाल है, எல்லாம் சிறை பிடிக்கப்பட்டு सबको निकाल दिया जाता है। அவனை அவ்வாறாக அந்த பலத்தை அவன் இழந்து वो போய்விட்டான். अपने बल को खो दिया। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளைகள் परमेश्वर के लोग பரிசுத்தத்திற்கு வைராக்கியமாக காணப்பட வேண்டும். पवित्रता के लिए हमें वैराग्य होना है। நாம் பரிசுத்த வாழ்க்கையில நம்மை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். पवित्र जीवन के लिए अपने आप को अर्पण அதைத்தான் करना है। யோபு சொல்லுகிறார், अभी अय्यूब कहता है, என் கண்களோடு உடன்படிக்கை பண்ணின मैंने நான் अपने आंखों के साथ एक वाचा बांधा है। ஒரு கன்னிகை மேல் நினைப்பாயிருப்பது எப்படி? दूसरी स्त्री के बारे में मैं कब कुछ सोच सकता हूँ क्या? கண்களோடு அவர் உடன்படிக்கை நம்ம பண்ண வேண்டும். आंखों के साथ एक वाचा हमें बांधना है। நம்முடைய அவயங்களோடு நம்ம உடன்படிக்கை பண்ண வேண்டும். अपने शरीर की अंगों के साथ एक वाचा बांधना என்னை है। அழைத்தவர் பரிசுத்தம் உள்ள தேவன், हमें बुलाया हुआ परमेश्वर पवित्र है। என்னை அழைத்தவர் சோத்திரம் அவர் அன்புள்ள தேவன், हमें बुलाया हुआ परमेश्वर प्रेमी है। என்னை அழைத்த தேவன் பரிசுத்தத்தை அழைத்திருக்கிறார் हमें परमेश्वर पवित्रता के लिए बुलाया। என்று சொல்லி हम उस सोच को जरूर पूरा करेंगे करके, நான் அவருடைய தரிசனத்தை நான் நிறைவேற்றுவேன் என்று சொல்லி उसकी दर्शन को हम पूरा करेंगे करके, நாம் பரிசுத்தத்திற்கு வைராக்கியமாக வாழ हम வேண்டும். पवित्रता के लिए वैराग्य से जिएंगे। ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவருக்காக நாம் எழும்பி நம்ம பிரகாசிக்க வேண்டும். परमेश्वर के लिए हम लोग उठकर प्रकाशित होना है। ஆண்டவருக்காக நம்ம வாழ வேண்டும். परमेश्वर के लिए हमें जीना है। மத்தேயு 5:29 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. मत्ती का 5वां अध्याय 25वां अध्याय में कहा गया है, 29 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, 29 में कहा गया है, உன் வலதுகல் உனக்கு இடருண்டாக்கினால் अगर तेरी दाहिना आंख तुझे कुछ संघर्ष दिया तो அதை பிடுங்கி எறிந்து போடு. उसे निकाल कर बाहर फेंक दे। உன் சரீரம் முழுதும் நரகத்தை தள்ளப்படுவதை பார்க்கிலும் मेरे पूरे शरीर को नरक में डालने से भला है। அவயங்களில் ஒன்று கெட்டுப்போவது உனக்கு நலமாய் இருக்கும். तेरे अंगों में का एक भाग बिगड़ जाए तो नहीं चलेगा। கண்ணானது சரீரத்தின் விளக்காய் இருக்கிறது. आंख जो है हमारे शरीर के लिए एक प्रकाश है। உன் கண் தெளிவாய் இருந்தால் तेरी आंख अगर अच्छी तरह से रही உன் तो சரீரம் முழுதும் வெளிச்சமாய் இருக்கும். तेरा शरीर पूरा प्रकाशित रहेगा। ஹalleluya. हालेलुया। கண்கள் இச்சைகள் பாவங்களை செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். आंखों की
इच्छा से पाप करते हैं கண்களின் வழியாக சோதரம் இச்சைக்கு அடிமையாகி கொண்டு और இருக்கிறார்கள். आंखों के द्वारा इच्छा के अधीन हो जाते தன்னுடைய हैं மடியில अपने मांडी में அக்கினியை வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். आग को लेकर चलते இது हैं மிகவும் ஒரு கொடூரமான ये காரியம். बहुत ही कठोर कार्य இது ஒரு है பயங்கரமான காரியம். बहुत ही भयंकर कार्य है சிம்சோனின் வீழ்ச்சி शिमशोन की गिरावट வேகமாக கடந்து வந்தது. बहुत ही तेजी से आई அவனை தேவனிடத்திலிருந்து பிரித்தது. उसे परमेश्वर से अलग किया அவன் பலத்தை இழந்தான். तो अपने बल को खो दिया அவன் கண்கள் கூடாக்கப்பட்டன, பிடுங்கப்பட்டன. उसकी आंखें निकाल दी गई அவன் சிறைச்சாலை மாவரித்துக் கொண்டு இருக்கிறான். बंदीगृह में आटा पीसने அவன் लगा ஜனங்களுக்கு வேடிக்கை பொருளாக மாறினான். लोगों के बीच में हंसी का ஆண்டவர் पात्र बन நம்மை गया। எச்சரிக்கிறார். आज परमेश्वर हमें चेतावनी ஆண்டவர் देता நம்மை है ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். आज परमेश्वर हमें जागरूकता से रहना चाहता है ஒரு மனுஷன் எப்பொழுது விழுவான்னு சொல்ல एक முடியாது. मनुष्य कब गिरेगा किसी भी नहीं அது पता வாழ்க்கை என்னைக்கு விழும் என்று சொல்ல முடியாது. उसका जीवन कब गिरेगा किसी भी नहीं पता ஏன் என்று சொன்னால் क्यों சத்துருவானவன் शत्रु जो है எவனை விளங்கலாம் என்று சொல்லி किसे निगले करके அவன் வகை தேடி சுற்றி திரிந்து கொண்டு वो இருக்கிறான். ढूंढ कर रहता है அல்லேலூயா. हालेलुया ஒரு தவளை நீங்க எடுத்துக்கொண்டு சொன்னால் एक मेंढक को आप लोग देखेंगे அந்த तो தவளையை பிடிச்சு उस मेंढक को पकड़कर நீங்க கொதிக்கிற தண்ணீரில நீங்க போட்டா आप लोग उबलने वाले पानी में डाल दिए அந்த तो தவளை என்ன செய்யும்? मेंढक क्या அந்த करेगा சூடை தாங்காம वो गरम को न सहते அந்த हुए துள்ளி வெளியே वो வந்துரும். बाहर आ जाएंगी ஆனா लेकिन அதே தவளைய वही मेंढक को ஒரு குளிர்ந்த ஒரு சோதரா சட்டியில போட்டா एक ठंडे पानी में डालेंगे तो அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை சூடாக்கும் பொழுது थोड़ा थोड़ा उसे गर्म करते समय அந்த இளம் சூடானது वो जो गर्मी है அதற்கு நன்றாக இருக்கும். उसका अच्छा रहेगा அது சந்தோஷப்பட்டு கொண்டு वो இருக்கும். आनंदित रहेगा அது வெளியே வராது. लेकिन बाहर नहीं आएगा ஆனால் लेकिन கடைசியில अंत में அது அதிக வெப்பத்தினால अधिक गर्मी के அது कारण மடிந்து போகும். वो मृत्यु पाएगा ஹalleluya. हालेलुया। அந்த புத்தினமான தவளையை போலதான் वो जो गैर बुद्धि इस मेंढक के समान இந்த சிம்சோன் ये सिमसोन தன்னுடைய மடியிலே उसके मांडी में அவன் அக்கினியை வைத்துக்கொண்டு பாவத்தோடு கூட விளையாடி वो கொண்டிருந்தான். आग को रखकर पाप के साथ खेल रहा था தனக்கு எதிரிகள் உண்டு என்று அவனுக்கு அறியாமல் அறியலவன். वो अपने विरोधी है करके वो अनजान रहा சத்துருக்கள் உண்டு என்று அவன் அறியாமல் இருக்கிறான். शत्रु है करके अनजान रहा பெலிஸ்தர் தன்னை பிடிக்க வருவார் என்று சொல்லி அவன் அறியாமல் காணப்பட்டான். फलिस्ती लोग उसे पकड़ने आएंगे करके अनजान रहा ஆனால் लेकिन இவன் சத்துருக்கள் கையில் அவன் மாட்டிக்கொண்டு ये விட்டான். शत्रु की हाथों में से पकड़ लिया गया சத்துருவின் கையில் அவன் அகப்பட்டு கொண்டான். शत्रु की हाथों में से पकड़ाया गया தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के இன்னைக்கு लोगों நம்மை சுற்றிலும் சத்துருக்கள் आज காணப்படுகிறார்கள். हमारे आसपास शत्रु लोग हैं இன்னைக்கு இவர்களை அகப்படுத்திக் கொள்ளலாம். आज कब इन्हें पकड़ लेंगे இன்னைக்கு இவர்களை மாட்டி வைக்கலாம். कब इन्हें हम फंसाएंगे எப்பொழுது இவர்களை குற்றம் பிடிக்கலாம் कब इनके बारे में कुछ कह என்று सकते हैं உங்களை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். ऐसा उनको देख रहे हैं தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के लोगों நாம் பாவத்தில் நம்ம விழுந்து விடக்கூடாது. हम पाप में नहीं गिरना है பாவத்துக்கு தள்ளிவிட சாத்தான் இருக்கிறான். पाप में गिराने के लिए शैतान है இன்னைக்கு பலவிதமான சோதரம் பாவங்களை நம் முன்பாக கொண்டு வந்து आज अनेक प्रकार के पाप को हमारे सामने ले आकर அவன் ஆண்டவரை பிரிக்க அவன் வகை தேடிக் கொண்டு இருக்கிறான். हमें परमेश्वर से अलग करने के लिए मार्ग ढूंढना நாம் है அதிக விழிப்புள்ளவர்களாக காணப்பட हम வேண்டும். अधिक जागरूक रहना है ஹalleluya. हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया வேதத்தில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. शास्त्र में कहा गया है யோசுவாவில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. योशुआ में कहा गया है யோசுவா ஜனங்களுக்கு சொல்லுகிறார், योशुआ लोगों को देखकर कहता உங்களை है பரிசுத்தம் பண்ணிக் கொள்ளுங்கள். तुम्हें आज पवित्र कर लो நாளைக்கு कल கர்த்தர் உங்கள் நடுவிலே அவர் அற்புதங்களை அவர் செய்கிறார். परमेश्वर तुम्हारे बीच में अद्भुत कार्य करेगा ஹalleluya. हालेलुया அவர் அற்புதமான காரியங்களை செய்கிற वो தேவன். अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के लोगों நம்மை நாமே பரிசுத்தம் ஒப்புக் हम கொடுப்போம். अपने आप को पवित्रता के लिए अर्पण करेंगे பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவரும் தேவனை தரிசிக்க முடியாது. पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को दर्शन नहीं कर பரிசுத்தம் सकता இல்லாமல் யாரும் தேவனை ஆராதிக்க முடியாது. पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता ஒரு நாளில एक दिन में நீங்களும் நானும் आप और हम அவருக்கு முன்பதாக उसके सामने நாம் நிற்க வேண்டியதா இருக்கும். हमें खड़ा रहना है ஹalleluya. हालेलुया உங்களுக்கு वसதிகள் இருக்கலாம். आपके लिए कोई धन दौलत हो உங்களுக்கு सकती है எத்தனை பேர் பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கலாம். आप लोग अनेक लोगों को जानते होंगे உங்கள் பாவங்களை மறைப்பதற்கு நீங்க பல காரியங்களை செய்து கொண்டு இருக்கலாம். आपकी पापों को छिपाने के लिए आप अनेक कार्य कर सकते என்னை हैं பார்க்க யார் இருக்கிறார்கள், हमें देखने के लिए कौन है என்னை குற்றம் படிப்பது யாருக்கு நீங்க ஒருவேளை சொல்லிக் கொண்டு இருக்கலாம். हमें गलती पकड़ने के लिए कौन है करके बोलते होंगे ஆனால் लेकिन கர்த்தர் உங்களை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார். परमेश्वर आज आपको देखता है ஹalleluya. हालेलुया கர்த்தர் உங்களை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார். परमेश्वर आपको देखता है அத 1 பேதுரு 1:15-16 சொல்லப்பட்டு पहला இருக்கிறது. पत्रस पहला अध्याय 15-16 में कहा गया உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல उन्हें बुलाया हुआ परमेश्वर जैसा पवित्र है நீங்களும் आप भी உங்கள் நடைக்கெல்லாவற்றிலும் பரிசுத்தராய் இருங்கள். अपने चाल चलन में पवित्र बनो நான் பரிசுத்த मैं पवित्र ஆகியால் நீங்களும் பரிசுத்த கர்த்தர் சொல்ல इसलिए இருக்கிறார். तुम भी पवित्र बनो करके
परमेश्वर ஒருபோது देखा है। மறந்து போகாதங்க. कभी भी ना भूलो உங்களை ரட்சித்தவர், तुम्हें उद्धार किया உங்களை हुआ, அபிஷேகித்தவர், तुम्हें अभिषेक किया हुआ, உங்களை அழைத்தவர், तुम्हें बुलाया हुआ, இந்த ஊழியத்துக்கு इस தெரிந்தெடுத்தவர், सेवकाई के लिए चुना हुआ, அவருக்கு உண்மையாக இருக்க उसके लिए வேண்டும். सच्चाई के साथ रहना है, அவருக்காக பரிசுத்தமாக ஊழியம் செய்ய उसके लिए வேண்டும். पवित्रता के साथ सेवकाई करना நாம் है, தேவனுக்கு பயந்து நம்ம ஊழியம் செய்ய हम வேண்டும். परमेश्वर के लिए डर के साथ सेवकाई நாம் करना है, மனுஷருக்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. हमें मनुष्य के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। மனுஷனுக்கு பயப்படுவே கண்ணீர் வரிக்கும் என்று சொல்லப்பட்டு मनुष्य से இருக்கிறது. डरेंगे तो आंसू ले आएगी करके कहा நாம் गया है। தேவனுக்கு பயந்து हम परमेश्वर से डरकर பரிசுத்தமாக ஊழியம் நம்ம செய்ய வேண்டும். पवित्रता के साथ हमें सेवकाई करना है। நாம் ஆராதிக்கிற தேவன், हम आराधना करने वाले நாம் परमेश्वर, பிரசங்கம் பண்ணுகிற हम தேவன், प्रचार करने वाला परमेश्वर, நாம் ஆராதிக்கிற வல்லமையுள்ள हम தேவன், आराधना करने वाले सामर्थ्य அவர் परमेश्वर, பரிசுத்தமுள்ள वो தேவன். पवित्र है, தன்னுடைய மடியில वो अपने वाणी में அக்கினியை வைத்துக் கொண்டிருக்க கூடாது. अग्नि को रखकर नहीं बैठना है, பாவத்தோடு கூட சூத்திரம் விளையாட கூடாது. पाप के साथ हमें नहीं खेलना வேதத்துல है। சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, शास्त्र में कहा गया है பாவம் வந்து पाप जो है வாசற்படியிலே படுத்திருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டு अपने இருக்கிறது. द्वार के बाहर वो सोया रहता தன் है, பாவங்களை மறைக்க கூடாது. अपने पाप को नहीं छिपाना தன் है, பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான். अपने पाप को छिपाने वाला आगे नहीं बढ़ेगा, அவைகளை விட்டு उसको छोड़कर அவன் வருகிறவனோ जो आज छोड़कर அறிக்கை आएगा, இடுகிறவனோ आज्ञा छोड़ने वाला அவன் व्यक्ति இரக்கம் பெறும் என்று சொல்லப்பட்டு वो இருக்கிறது. दया पाएगा करके कहा गया என்னுடைய है। பிள்ளைகளே, परमेश्वर के लोग பாவத்தை மறைக்க முடியாது. पाप को नहीं छिपा सकते, ஒரு நாளில் एक दिन அந்த में பரிசுத்தமுள்ள தேவனை நம்ம காண तो வேண்டும். पवित्र परमेश्वर को हम लोग ढूंढना அந்த है, பரிசுத்தமுள்ள தேவனை பார்க்க வேண்டும். पवित्र परमेश्वर को हम लोग देखना है, அவரோடு கூட उसके साथ அவர் ஆட்சி செய்ய வேண்டும். राज्य करना है, நம்மளது எதிர்பார்க்கிறார் हमसे वो चाहता ஒரு है பரிசுத்தமுள்ள வாழ்க்கை, एक पवित्रता की ஒரு जीवन, ஜெயமுள்ள வாழ்க்கை. एक जय की जीवन, அதை ஆண்டவர் விரும்புகிறார். ये परमेश्वर चाहता है। இதை இந்த சிம்சோன் இழந்து ये போனார். सिमसोन से खो दिया, பிரைஸ் அல்லாஹ். हालेलुया। அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் தான், अभिषेक पाया हुआ है, சோதரம் தேவனால் அழைக்கப்பட்டவன் தான், परमेश्वर से बुलाया हुआ है, அவன் பராக்கிரமசாலி தான். पराक्रमशाली है, ஆனால் लेकिन அவன் அதை எல்லாவற்றையும் இழந்து वो போய்விட்டான். सब कुछ खो देता அவன் है, மறைந்தவனாக அவன் காணப்பட்டு वो उसे இருக்கிறான். सब कुछ खो देता है। சிம்சோனுக்கு இதை சொல்லும் பொழுது सिमसोन के बारे में कहा जाता है, சிம்சோன் सिमसोन தேவனுக்கு என்று பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட என்பதை அறிந்து கொள்ளவில்லை. परमेश्वर के लिए प्रतिष्ठित किया गया है करके वो अनजान रहा। இரண்டாவதாக दूसरा, அவன் தேவ ஆவியினால வழி நடத்துகிறோம் என்பதை மறந்து விட்டான். परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो चलाया गया है करके वो भूल जाता है। மூன்றாவதாக तीसरा, கர்த்தர் தன்னை குறித்ததான நோக்கத்தை திட்டத்தை அவர் அறியவில்லை. परमेश्वर उसके ऊपर रखा हुआ वो प्लान को वो अनजान रहा। நான்காவதாக चौथा, தன் தாய் தகப்பனுக்காக கர்த்தருக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை அவன் அறியாமல் இருந்தான். अपने माता पिता के द्वारा जो अर्पण किया हुआ जीवन को वो अनजान रहा। சத்துருக்கள் மத்தியில शत्रुओं के बीच में அவன் தன்னை பலவீனனாக वो अपने आप को बलवीन बनाकर தன்னை தானே பலவன காண்பித்து वो விட்டான். अपने आप को बलवान करके दिखा दिया, பலவீனனாக காண்பித்து விட்டான். बलहीन करके वो दिखा दिया। தன்னை சுற்றிலுமாக अपने आसपास के लोगों को குற்றம் கண்டுபிடிப்பதற்கு गलतियों को देखने के लिए சத்துருக்கள் இருக்கிறார்கள் शत्रु लोग हैं, என்றவன் அறியாதவனாக उससे वो अनजान रहे। தன்னுடைய மடியிலே अपने मंडी में அவன் அக்கினியை சுமந்தவனாக அவன் वो காணப்பட்டான். अग्नि को लेकर वो चलने लगा। தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के लोग நாம் எச்சரிக்கையோடு நம்ம வாழுவோம். हम इस चेतावनी के साथ हम लोग நாம் जिएंगे। அதிக பரிசுத்தமுள்ள வாழ்க்கைக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம். हम अधिक पवित्र जीवन के लिए अपने आप को अर्पण करेंगे। ஆண்டவர் परमेश्वर சீக்கிரம் வரப்போகிறார். शीघ्र आने वाला है, ஆண்டவர் வெகு சீக்கிரம் வரப்போகிறார். परमेश्वर बहुत ही शीघ्र आने वाला அது है। வருகை மிகவும் சமீபம். उसकी आगमन बहुत ही समीप நீ है। யோசித்து பார்க்கணும். आप लोग सोच कर देखिए, ஒருவேளை एक बार அது வருகையில उसकी आगमन में நாம் கைவிடப்பட்டு போவோம் என்று अगर சொன்னால் हम हाथ छोड़ दिए गए हो, கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்க थोड़ा வேண்டும். सोच कर देखिए, இவ்வளவு வருஷம் ஆண்டவருக்காக ஓடுனது வெறுமையாக போய்விடும். इतना वर्ष परमेश्वर के दौड़े वो खाली हो जाएगा। இத்தனை வருஷம் ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்வது சோதரம் வெறுமையாக மாறிவிடும். इतना वर्ष परमेश्वर के लिए सेवकाई किए वो व्यर्थ हो जाएगा। எப்பொழுது कब? அந்த பாவத்தை செய்யும் பொழுது, पाप को करते அந்த समय, பாவத்தை செய்து वो पाप को कर அவர் வரும் பொழுது वो आते समय நாம் கைவிடப்படுவோம் என்று சொன்னார். हम अगर आप छोड़ दिए गए तो நம்மை போல, हमारे समान இல்ல என்னை போல, या मेरे समान இல்ல உங்களை போல या आपके समान பரிதாப மனுஷன் யாரும் இருக்க முடியாது. इतने कष्ट में रहने वाले मनुष्य कोई नहीं हो सकता। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के लोगों, சிம்சோன் மகா பலவான் தான். सिमसोन
शिमशोन महाबलवान था, அவன் பலவனாக காணப்பட்டான். बलवान व्यक्ति था, அந்த பாவத்தினாலே लेकिन पाप के அவன் निमित्त எல்லாவற்றையும் அவன் இழந்தவனாக அவன் காணப்பட்டான். वो अपने जीवन में सब कुछ खो दिया। Praise the Lord. Hallelujah. இன்னைக்கு अनेक சபைகளில் अनेक कलीसियाओं में சோத்ரம் ஒரு பிரசங்கம் என்று சொன்னால் प्रचार करके बोले ஒரே ஆசீர்வாதம், ऐसी आशीष, ஒரே வாக்குத்தத்தங்கள், प्रतिज्ञाएं, அதாவது பற்று போட்டு ஒரு பூசுகிறதான ஒரு பிரசங்கங்கள், बटर लगाने वाली एक प्रचार, சோத்ரம் அதாவது ஒரு பிரசங்கம் என்று சொன்னால் प्रचार करके बोले வாக்குத்தத்தங்களே பேசுவார்கள். प्रतिज्ञाएं को ही बोलते நீ வாழாகாமல் தலையாவாய், कुछ नहीं सर நீ बनेगा, கீழாகாமல் மேலாவாய், नीचा नहीं ऊंचा होगा, உன் ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பே, मैं आशीष ही आशीष நீ करूंगा, அநேக ஆட்களுக்கு கடன் கொடுப்பாய், अनेक जातियों को उधार நீயோ देगा, கடன் வாங்காதிருப்பாய் लेकिन तू कर्ज न लेगा, என்று பேசிக்கொண்டே இருந்தார். ऐसा बोलते ही இந்த रहे। பிரசங்கம் நல்லா இருக்கிறது, प्रचार अच्छा है, எங்க பிரசங்கம் நல்ல பிரசங்கம் பண்ணுதார்கள், आप अच्छी तरह से प्रचार करते எங்க हैं, ஆசீர்வதிக்க என்று சொல்வார்கள். हमें आशीष कीजिएगा, ஆனா பாவத்தை குறித்து பேசும் பொழுது, लेकिन पाप के बारे में बोलते समय பரிசுத்த ஆவியானவர் கண்டித்து உணர்த்தும் பொழுது पवित्र आत्मा उनकी से बातें करते அவர்கள் குறை समय वो சொல்லுவார்கள். लोग कमी बतलाएंगे, ஆனாலும் लेकिन फिर भी தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம், परमेश्वर के लोग हम, பிரசங்கம் பண்ணவராகிய நாம் प्रचार करने वाले हम, பரிசுத்தத்தை குறித்து, पवित्रता के बारे में, பாவத்தை குறித்து पाप के बारे में ஜனங்களுக்கு நம்ம சொல்லியாக வேண்டும். लोगों को हमें बतलाना है। ஹalleluya. Hallelujah. சில பேர் சொல்லுவாங்க, कुछ लोग कहेंगे நாம் இவர்களுக்கு சார்பா நம்ம வசனத்தை பேசலாம், हम इनके योग्य हम लोग वचन बोलेंगे, இவர்கள் சோத்திரம் சபையுடைய காரியங்களை எல்லாவற்றையும் முழுப்பேற்படுத்திக் கொள்ளுகிறார்கள், कलीसिया के सब कार्य ये लोग ही करते हैं, பிபிஎஸ் காரியங்களை ஃபுல்லா முழுப்பேற்படுத்திக் कलीसिया கொள்ளுகிறார்கள். के हर एक कार्य को पूरा करते हैं, அவர் என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்லை, वो लोग कुछ भी बोले तो चलेगा, என்ன செய்தாலும் பரவாயில்லை, कुछ भी करे तो चलेगा, அவர்களுக்கு சார்பாக பேசுவார்கள். उनके इस योग्य हम लोग बोलेंगे। தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के लोग, அழைக்கப்பட்ட ஊழியக்காரர்களே, बुलाए हुए सेवक, கர்த்தருடைய வார்த்தையை परमेश्वर के वचन को சத்தியமாக சத்தியம் பேசுவதற்கு सत्य को सत्य करके बोलने के கர்த்தர் लिए உங்களை அழைத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने आपको बुलाया है। Praise the Lord. Hallelujah. எப்படியாவது जिस तरह से भी நம்மளால இயன்ற அளவு, हमसे जितना हो, ஊழியக்காரர் இயன்ற அளவு सेवक से जितना हो, நம்மோடு கூட हमसे लेकर பரிசுத்தமுள்ள ஜனங்களை पवित्र लोगों को சோத்திரம் நம்மோடு கூட பரலோகத்துக்கு நாம் அழைத்து செல்ல हमारे வேண்டும். साथ स्वर्ग में हमें ले चलना है। நாம் சோத்திரம் பிரசங்க அந்த ஆறுதலான பிரசங்களை பண்ணிக்கொண்டு, इस प्रचारों को हम लोग कर कर, வாக்குத்தத்தங்களை பிரசங்களை பண்ணிக்கொண்டு, प्रतिज्ञाओं को हम लोग कर कर, ஆசீர்வாதத்தை பேசிக்கொண்டு, आशीष को ही हम लोग बोल கிருபையை कर, பேசிக்கொண்டு अनुग्रह को ही हम लोग बोल நாம் कर, இருப்போம் என்று சொன்னார். हम लोग रहे तो நம்மை வந்த ஜனங்கள், हमारे साथ आए हुए நம்முடைய लोग, சபையின் ஜனங்கள் हमारे कलीसिया के அவருடைய लोग வருகைக்கு சோத்திரம் அவர்கள் வர முடியாது. उसके आगमन में नहीं आ पाएंगे। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. என்னை கர்த்தருடைய ஊழியத்துக்கு அழைக்கும் பொழுது परमेश्वर ने पासवान को इसे उपाय में அவர் बुलाते சொன்ன समय காரியம், उन्होंने कहा நீ சத்தியத்தை சத்தியமாக பேச வேண்டும், सत्य को सत्य रीति से உன்னை बताना है। அதற்காக நான் அழைத்திருக்கிறேன், उसी के लिए तुझे बुलाया गया है। கண்டித்து நீ உணர்த்த வேண்டும். लोगों को इन कार्य के நான் बारे में என்னுடைய बोलना है। சபையில விசுவாசிகள் குறையாத आज இருக்கிறார்கள், हमारे कलीसिया में विश्वासी लोग कम हैं, ஆனாலும் फिर भी சத்தியத்தை பேசுவதற்கு நான் பயப்படுவதில்லை. सत्य को बोलने के लिए हम नहीं डरते। நான் சத்தியத்தை பேசுவதற்கு என்றைக்குமே பின்வாங்கி போவதில்லை. सत्य को बोलने के लिए हम लोग कभी पीछे नहीं होते। பணத்திற்காக என்றைக்குமே ஊழியம் செய்வதில்லை. पैसे के लिए कभी सेवकाई नहीं இந்த करते। வயிற்று பிழைப்புக்காக ஊழியத்துக்கு கர்த்தரை அழைக்கவில்லை. इस पेट के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है। என்னோடு கூட இருக்கிற ஜனங்கள், हमारे साथ रहने वाले लोग, என்னுடைய தேவனுடைய பிள்ளைகள், हमारे परमेश्वर के लोग, தேவ பிள்ளைகள் परमेश्वर के அவர்களை लोग, பரலோகத்துக்கு கொண்டு वो வேண்டும், लोग उन्हें स्वर्ग ले चलना है। அவர்களை பரிசுத்தத்திற்கு வழி நடத்த வேண்டும் उन्हें என்று சொல்லி पवित्र मार्ग में चलाना है। கர்த்தரின் அழைத்தபடியினால परमेश्वर ने बुलाया है इसलिए இன்றைக்கு आज भी ஒரு சில பேருக்கு कुछ लोगों के लिए சோத்ரம் சத்துருவாக हम காணப்படலாம். लोग शत्रु भी बन सकते என்னுடைய हैं। வார்த்தையானது हमारी जो कार्य ஜனங்களுடைய है, இருதயத்தை குத்தலாம், लोगों के हृदय को टोच அவர்களுக்கு सकती है, பாதிப்பை உண்டாக்கலாம். उनको कुछ संघर्ष हो நான் அதை सकता குறித்து है, கவலைப்படுவதில்லை. इसके बारे में हम नहीं நான் सोचते। கர்த்தருக்காக परमेश्वर के लिए வைராக்கியமாக वैराग्य से, பரிசுத்தத்தை பேசும்படியாக पवित्रता से बातें करने के சோத்ரம் लिए, பாவத்தை கண்டித்து உணர்த்தும்படியாக पाप को उनको दिखलाने के என்னை लिए அழைத்தபடியினால हमें बुलाया गया है। இன்றைக்கு इसलिए பிரசங்கம் கர்த்தர் அதுமுறை பேசுவதற்கு கிருபை கொடுத்திருக்கிறார். आज उस बारे में बातें करने के लिए परमेश्वर अनुग्रह देता है। ஹalleluya, हालेलुया। ஹalleluya. Hallelujah. கர்த்தர் எவ்வளவு நல்லவர். हमारा परमेश्वर अच्छा है। நாம் பரிசுத்தத்திற்கு हम पवित्रता के நம்மை लिए ஒப்பு கொடுக்க अपने வேண்டும். आप को अर्पण करेंगे। ஹalleluya. Hallelujah. சிம்சோனை போல शिमशोन के समान நாம் பரிசுத்தத்தை இழந்தாதபடிக்கு हम पवित्रता को न खोते हुए, நமக்குள் இருக்கிறதான அந்த பலத்தை हमारे अंदर रहने वाले बल को அதை இழந்து போகாதபடிக்கு उसे न खोते हुए, தேவ பலத்தால परमेश्वर के बल से நாம் ஒவ்வொரு நாளும் நிரம்பி இருந்து हम हर एक दिन भर कर கர்த்தருக்கான ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். परमेश्वर के लिए हमें अर्पण करना है। ஹalleluya, हालेलुया। ஹalleluya. Hallelujah. நம்மை குறித்து குறை சொல்லலாம், हमारे बारे में कमी बोल सकते நாம் हैं, நாம் பேசுகிறவர்களுக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம், हम जो बोलते हैं उन्हें नहीं पसंद ஒரு है। பாவத்தை குறித்து பேசிக்கொண்டே ये இருக்கிறார், पाप के बारे में बोलता है, பாவத்தை கண்டித்து பேசிக்கொண்டே पाप के இருக்கிறார் बारे में ये बोलता रहता है। என்று சிலர் சொல்லி இருக்கிறார்கள். कुछ लोग बोलते हैं
நீ என்னதான் நீங்க பேசுனீங்க आप लोग क्या बोले हैं? நான் கர்த்தருக்கு அதுக்கு हम சந்தோஷப்படுகிறேன் परमेश्वर में उसके लिए நான் आनंद பேசல हैं। हम नहीं बोले हैं। எனக்குள்ள இருக்கிறதான हमारे अंदर रहने वाले பரிசுத்தாவில பேசி இருக்கிறார் पवित्र आत्मा बातें என் வாய் தான் வெளியே தெரியுதே வெளியே हमारी जुबान बाहर दिखती ஆனா है, உள்ள இருக்கிறவன் लेकिन अंदर रहने वाला பரிசுத்தாவில கண்டித்து உணர்த்துகிறார் पवित्र आत्मा आपसे बातें करता அப்படி है। சொல்லி இருக்கிறாங்க ऐसा बोले நீ हैं। என்னதான் நீங்க பேசுனீங்க आप हमें ही बोले हैं, என்னதான் நீங்க குறை சொன்னீங்க हमें ही आपने कमी बताए। ஏன்னு சொன்னால் क्यों? இது கர்த்தருடைய வார்த்தை ये परमेश्वर का वचन। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya हालेलुया। எப்படியாவது कैसे भी என்னோடு இருக்கிற தங்கள் பிள்ளைகளே हमारे साथ रहने वाले लोगों சபையின் பிள்ளைகளே कलीसिया के लोगों ஒரு को கூட்டத்தாரை एक बड़ी झूठ பரலோகத்துக்கு எப்படியாவது கொண்டு போக स्वर्ग வேண்டும் राज्य में ले चलना है। பிரைஸ் அல்லாஹ் हालेलुया। பரிசுத்தமுள்ள தேவனை நம்ம தரிசிக்க போறோம் पवित्र परमेश्वर का हम दर्शन करने ஒரு वाले நாள்ல हैं। एक दिन யுக யுகமாக युग युग तक நாம் அவரோடு கூட हम उसके साथ அந்த பரலோகத்துல स्वर्ग राज्य அவரோடு கூட நம்ம இருப்போம் उसके साथ हम रहेंगे। பிரைஸ் அல்லாஹ் हालेलुया। ஹalleluya हालेलुया। பரிசுத்தத்திற்கு நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் पवित्रता के लिए अर्पण करेंगे। பரிசுத்தத்திற்காக நாம் வைராக்கியமா நாம் நிற்போம் पवित्रता के लिए हम वैराग्य से जिएंगे। நம்முடைய வாழ்க்கை हमारे जीवन உண்மையும் सच्चाई के साथ உத்தமமாக सच्चाई के साथ பரிசுத்தமாக पवित्रता के साथ அதிகமாக சொல்ற காரியம் என்று சொன்னால் एक हम लोग कहने वाले कार्य है। முதல் ஊழியம் செய்கிறவர்களாகிய நானோ யாரா இருக்கலாம் पहले सेवकाई करने वाले हम या कोई भी हो, அவருடைய குடும்பத்தினர்கள் சாட்சியா இருக்க उनके வேண்டும் परिवार के लिए वो गवाही रीति से रहना है। பிரைஸ் அல்லாஹ் हालेलुया। அவருடைய குடும்பம் அவரை குறித்து சாட்சி சொல்ல வேண்டும் उनके परिवार उसके बारे में गवाही देना है। அவருடைய மனைவியா இருக்கலாம் उसकी पत्नी हो सकती है, அவருடைய பிள்ளைகளா उसके இருக்கலாம் बच्चे हो सकते இந்த हैं, பெற்றோரா இருக்கலாம் माता पिता हो सकते முதல் हैं। குடும்பத்திற்கு पहले परिवार அவருடைய में சாட்சியாக இருக்க வேண்டும் गवाही रीति से रहना है। ஹalleluya हालेलुया। குடும்பத்திற்கு ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கையை காட்டுகிற ஊழியர்கள் காணப்பட வேண்டும் अपने परिवार को पहले पवित्र जीवन को दिखाने वाले सेवक बनना है। அப்படி நாம் வாழ்ந்து वैसा हम जिएंगे तो நாம் எல்லாருக்கும் முன்பதாக औरों के सामने நாம் சாட்சியாக வாழ வேண்டும் गवाही रीति से हम लोग जी पाएंगे। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya हालेलुया। பரிசுத்த ஒப்பு கொடுப்போம் पवित्रता के लिए अर्पण करेंगे। கர்த்தர் தாமே परमेश्वर ही இந்த வார்த்தையின் மூலமாக इस वचन के द्वारा உங்களை கர்த்தர் பலப்படுத்துவாராக आपको परमेश्वर बल देगा, உங்களை கர்த்தர் आपको ஆசீர்வதிப்பாராக परमेश्वर आशीष करेगा। கர்த்தர் நாம் ஜெபிக்கலாம் हम प्रार्थना நாம் करेंगे। இருக்கிற இடத்திலே हम जिस स्थान में हैं நம்மை நாமே தாழ்த்தி अपने आप को अर्पण करते நம்மை हैं, நாம ஒப்பு கொடுப்போம் अपने आप को अर्पण करेंगे। இந்த உலகத்துல इस संसार में குறையில்லாத மனுஷன் ஒருவனும் இல்லை कमी नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं। ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில சில குறைகள் உண்டு हर एक मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ ஆனால் कमी है। துணிகரமான பாவம் செய்யக்கூடாது लेकिन चाहते हुए भी पाप नहीं करना நாம் है। துணிகரமான பாவத்திற்கு நம்ம விலகி காணப்பட इस வேண்டும் प्रकार की पाप से हमें अलग रहना நம்முடைய है। பிள்ளைகளுக்கு நம்ம உண்மையா இருக்க வேண்டும் हमारे बच्चों के लिए हमें सच्चाई के साथ रहना சோதரம் நாம் கட்டின நம்முடைய மனைவிக்கு நம்ம உண்மையாக இருக்க है। வேண்டும் अपनी पत्नी से सच्चाई के साथ रहना है। நம்முடைய குடும்பத்துல உண்மையா இருக்க வேண்டும் अपने परिवार में सच्चाई के साथ रहना நாம் है। அப்படி வாழும் பொழுது हम ऐसे जीते समय கர்த்தர் நம்மளை இந்த உலகத்தில் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் परमेश्वर हमें संसार में आशीष करना चाहता है। சிம்சோனுடைய வாழ்க்கை குறித்து நம்ம கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்க்க கர்த்தர் கிருபைகளை கொடுத்தார் सिमसोन के जीवन के बारे में ध्यान करने परमेश्वर मदद किया। சிம்சோன் மகாபலவான் सिमसोन महाबलवान, சோதரம் 1000 பேரை அவன் கொண்டு போட்டான் 1000 लोगों को वो मार दिया। அவனுடைய கையில கட்டப்பட்டதான அந்த கயிறு அருந்தது उसके हाथ में बांधे हुए रस्सी जल टूट गई। அவனுக்குள்ளாக பரிசுத்தாவியானவர் उसके காணப்பட்டார் अंदर पवित्र आत्मा था। ஆனால் இன்றைக்கு लेकिन आज தன்னுடைய மடியிலே जब वो अपने मांडी में அக்கினியை சுமந்தவனாக காணப்பட்டானோ अग्नि को लेकर वो चलने அந்த लगा, தெளிலால் மடியில் அவன் படுத்துக் கொண்டிருந்தானோ दलीला की मांडी में जब वो सो पड़ा, அந்த வேசியை கண்டவன் போனானோ उस वेश्या के पीछे वो जब गया, அவனுடைய பலம் அவனை விட்டு நீங்கிச்சு उसका बल उससे अलग हो गया। கர்த்தர் அவனை விட்டு நீங்கி விட்டார் परमेश्वर उससे अलग हो இது गया। நமக்கு ஒரு எச்சரிக்கையாக ये காணப்படுகிறது हमारे लिए एक चेतावनी है। நாம் தேவ சமூகத்தில் हम ஜெபிப்போம் परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना நம் करेंगे। கண்களை மூடி நம்ம हम ஜெபிக்கலாம் आंखों को बंद करके प्रार्थना எங்களை करेंगे। அதிகமாக நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் हमसे अधिक प्रेम करने वाले अच्छे पिता आपको இந்த धन्यवाद। அருமையான ஓய்வு நாளுக்காக நாங்கள் इस ஜெபிக்கிறோம் अच्छे इतवार के समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं ஆண்டவரே परमेश्वर। இந்த எங்களோடு கூட ஒரு சில காரியங்களை பேச இருக்கிறது ஐயா आज आप हमसे कुछ कार्य बातें किए हैं। இயேசுப்பா அதற்காக நன்றி ஆண்டவரே यीशु इस कार्य के लिए धन्यवाद। நம்முடைய வாழ்க்கையில हमारे जीवन में உமக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் आपके अप्रिय कार्य, உமக்கு பிரியமில்லாத பாவங்கள் आपके अप्रिय पाप ஏதுவாக இருந்தாலும் कुछ भी हो तो எங்களுக்கு ஒரு விசை கூட एक बार हमें அதில் எங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கும்படியாக उससे हमें बचाने के உம்மை लिए நோக்கி ஜெபிக்கிறோம் என கேட்கலாம் आपकी और प्रार्थना करते हैं। ஆண்டவரே உம்மை நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஐயா परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते நீர் हैं। எங்களை பலப்படுத்தி இருக்கிறீர்
आप हमें बल दिए ஒரு हैं பரிசுத்த வாழ்க்கை நடத்தும்படி எங்களுக்கு ஆண்டவரே அனுக்கிரகம் செய்திருக்கிறீர். पवित्र जीवन चलाने के लिए हमें अनुग्रह दिए உம்முடைய हैं வருகை வரைக்குமாக आपकी आगमन அந்த तक பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொள்ள इस पवित्रता को हम संभाल எங்களுக்கு நீர் பலன் தரும்படியாக நாங்கள் हमें आप செபிக்கிறோம். बल देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं ஒருபோதும் कभी भी உம்முடைய நாமத்தை நாங்க தூசிக்க கூடாது ஆண்டவரே. आपके नाम को हम लोग दूषण नहीं உம்முடைய करना நாமத்துக்கு நாங்க விரோதமாக வந்துவிடக் கூடாது ஐயா. आपके नाम के विरोध हम लोग नहीं எங்களை आना है முற்றிலுமாக தாழ்த்துகிறோம் என்று சொல்லி हम अपने आप को प्रार्थना தேவ करते हैं சமுதாயம் செபிக்கலாம். परमेश्वर के समुख में प्रार्थना எங்களை करते हैं அதிகமாக நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். हमसे अधिक प्रेम करने वाले अच्छे पिता आपको உம்முடைய धन्यवाद பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் आपके செபிக்கிறோம். बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை हर एक ஆசீர்வதிப்பீராக. बच्चों को आशीष कीजिए உம்முடைய கிருபையில கரம், आपकी अनुग्रह की हाथ உம்முடைய பரிசுத்தமுள்ள கரம், आपकी पवित्रता की हाथ உம்முடைய வல்லமையின் கரம் आपकी सामर्थ की हाथ ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை தாங்கும்படியாக हर एक செபிக்கிறேன். बच्चों को संभालने के लिए हम प्रार्थना करते இயேசுவின் நாமத்தினால हैं यीशु के नाम से எல்லா வியாதிகள் மாறும்படியாக सारे செபிக்கிறேன். बीमारी बदलने के लिए प्रार्थना करते பலவீனங்கள் हैं மாறும்படியாக செபிக்கிறேன். बलहीनता बदलने के लिए प्रार्थना करते குடும்பத்துல हैं சமாதானம் கட்டளையிடுவீராக. परिवार में समाधान की आज्ञा குடும்பத்தில் दीजिए ஆசீர்வாதம் கட்டளையிடுவீராக. परिवार में आशीष आज्ञा दीजिए எந்தெந்த காரியங்களுக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறாங்களோ जो भी कार्यों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं அந்தந்த காரியத்தில் அற்புதம் நடப்பதாக. कार्यों में अद्भुत हो जाए அந்தந்த காரியத்தில் விடுதலை கொடுப்பீராக. कार्यों में छुटकारा हो இதை பார்த்துக்கொள்ள பிள்ளைகள் மனதார देखने ஆசீர்வதிக்கிறோம். वाले हर एक बच्चों को पूरे मन से आशीष அந்த करते हैं பிள்ளைகளை உயர்த்துவீராக. बच्चों को ऊंचा कीजिए எல்லா வியாதிக்கு விலக்கி பாதுகாத்துக் सारे கொள்ளுங்க. बीमारी से अलग कीजिए எங்க தேசத்துக்காக செபிக்கிறோம். एक देश के लिए हम प्रार्थना தேசத்தை करते हैं எழுப்புவதில் கட்டளையிடுங்க ஐயா. हमारे देश में रिहाई எங்க दीजिए தேசத்தில் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படும்படியாக हमारे செபிக்கிறேன். देश के लोग सब जन उद्धार पाने के लिए இந்த प्रार्थना करते हैं மகாராஷ்டிராவுக்காக செபிக்கிறோம். हमारे महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना இந்த करते தானா हैं மாவட்டத்துக்காக செபிக்கிறோம். थाना शहर के लिए प्रार्थना करते தானா हैं மாவட்டத்தில் எழுப்புதல் கடந்து வரட்டும். थाना शहर में एक बड़ी रिहाई आने दो அவருடைய நாமம் மகிமைப்படும்படியாக आपके செபிக்கிறேன். नाम की महिमा होने के लिए हम ஜனங்கள் प्रार्थना करते हैं ரட்சிக்கப்படுவார்களாக. लोग उद्धार पाए இந்த கொரோனா வைரஸ்னால कोरोना वायरस के द्वारा யாரெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டு ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட்டா இருக்கிறாங்களோ जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है அவர்கள் சீக்கிரத்துக்குள்ளாக விடுதலை பெற்று वो लोग शीघ्र में छुटकारा தங்களுடைய पाते வீடு हैं கடந்து போகும்படியாக நான் अपने செபிக்கிறேன். घर लौट जाने के लिए हम प्रार्थना தேவ करते பலம் हैं அவர்களை தாங்கும்படியாக செபிக்கிறேன். परमेश्वर का बल उन्हें संभालने के लिए प्रार्थना करते பயத்தின் हैं ஆவிகள் மாறுவதாக. भय की आत्मा बदलने दो மரண பயம் மாறுவதாக. मृत्यु का डर बदलने दो தேவ பலத்தால் நிரப்பும்படியாக நாங்கள் परमेश्वर செபிக்கிறோம். के बल से आप भरने के लिए எல்லாரையும் प्रार्थना करते हैं முற்றிலுமாக தாழ்த்துகிறோம். सबको पूरी तरह से अर्पण இந்த करते हैं வசனத்துக்கு பிள்ளைகளை ஒப்பு கொடுக்க, अपने वचन के लिए लोग अर्पण இந்த करते हैं வசனத்தின்படி நடக்க उस वचन के अनुसार चलने அவளுக்கு के கிருபை लिए புரியும்படியாக उन्हें செபிக்கிறேன். अनुग्रह देने के लिए हम प्रार्थना करते தேவ हैं நன்மையினால நிரப்புங்க, परमेश्वर की भलाई से भर दीजिए ஆசீர்வதியும். आशीष कीजिए இயேசுவின் ஜெபங்களின் ஜீவனல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से मांगते पिता ஆமென். आमेन நாத்துமாவே கர்த்தரை சோதரி, முழுவதுமே பரிசுத்த நாமத்தை சோதரி. நாத்துமாவே கர்த்தரை சோதரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. आमेन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन उसके पवित्र नाम को धन्य कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसने किए उस सारे उपकार को कभी ना भूलना। आमेन। நம்முடைய கர்த்தர் இயேசுவின் கிருபையும் हमारे यीशु का अनुग्रह பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता का प्यार பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியமும் पवित्र आत्मा का सहभागिता நம்மோடு கூட हमारे साथ உலகத்தில் உள்ள பரிசுத்தவான்களோடு கூட संसार के हर एक पवित्र लोग के साथ என்றென்றைக்கும் இருப்பதாக. हमेशा रहे ஆமென். ஆமென். அல்லேலூயா. हालेलुया அல்லேலூயா. हालेलुया God bless you. கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க.